Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all? One moment. Yeah. You can open your mic and answer. Okay, inshallah. How are you all? कैसे हैं आप सब? बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं. I think मुझे लग रहा है. Let me see. Inshallah. No problem. Yeah. So, हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कोई बताएगा मुझे कैसे पता चलेगा? इतने सारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बात करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कैसे हैं आप लोग. और fine, alhamdulillah. So Abu Bakr and Aisha there, Aisha, Aska, Fatima. So सबसे पहले किसने ज्वाइन किया था? Who joined? Fatima, you joined on number 1. Very good, mashallah. Okay, it means that all of you are so excited. Excited about आप लोग या नहीं हैं? Yes. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि मुझे बताइएगा कि आप लोग इंग्लिश के साथ गुड हैं या उर्दू के साथ गुड है. ठीक है, बट आई वांट कि मैं दोनों लैंग्वेज को साथ लेके चलूं. ठीक है ना, कि जिसको नहीं समझ आ रहा इंग्लिश वर्ड्स तो फिर मैं उर्दू उसके लिए बोलूं. ठीक है ना, इंशाल्लाह. आई थिंक बोथ चलेगा आप लोग के लिए भी, राइट है ना? आप दोनों लैंग्वेज यूज करें, है ना? Yes, she can use both languages.
I can use both languages. Jazakallahu khair. या इससे ये कि थोड़ा सा जिसको नहीं समझ आ रहा तो वो उसमें समझ लेगा, जिसको दूसरी लैंग्वेज समझ आ रही तो दूसरी में समझ लेगा, राइट। हमने क्या करना है, एक दूसरे के लिए आसानी करना है ना, यानी हमने ऐसा करना है स्पेशली इन द मंथ ऑफ रमजान कि हम एक दूसरे के लिए बेस्ट करें। और एक दूसरे के लिए बेस्ट कैसे करेंगे कि एक दूसरे के लिए easiness, easy कहते ना पापा को आप, mama easy please easy, why you are getting so angry mama, easy please, right। so हमने क्या करना है रमजान में, easy यानी कि easiness, सबके लिए आसानी पैदा करनी इंशाल्लाह, राइट। आपके बोले टीचर कैसी हैं? सॉरी हाउ आर यू? आप कैसी हैं, आप पूछ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आई वाज आल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड for today class, and I also wanted to see all of you। मैं सबको देखना चाहती थी, आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं तो। और रात से ही जब मैं सुहूर कर रही थी तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड सोच रही थी कि बच्चे कैसे आएंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे हम क्लास करेंगे। I was very excited, alhamdulillah। Zoha, how are you? Aruj, how are you? कैसी हैं आप दोनों? Fine, alhamdulillah, 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 alhamdulillah। Okay, let's see और किसने join किया हमें। Hafsa joined also। Hafsa, assalamu alaikum, how are you? Walaikum assalam. I'm fine, alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, alhamdulillah। Nice to see you all, mashallah, alhamdulillah। Okay, so should we start or not? इतनी बातें सही हैं अभी, अगर हम और ज्यादा बातें करेंगे ना तो फिर और लेट हो जाएंगे, तो Yes. छोटी यस इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे बीच में, ठीक है ना। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, सो देन वी विल एबल टू फिनिश ऑन टाइम इंशाल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह, राइट। और एक एक बात और कहूंगी कि मेक श्योर आप सब अपना माइक अपने हाथ में रखें, राइट। अगर ऑन हो जाता है तो कोशिश करेंगे उसको ऑफ कर लें। मैंने आप लोग को परमिशन बिल्कुल म्यूट नहीं किया। आई ट्रस्ट ऑन ऑल ऑफ यू। सो जब मैं बोलूंगी, जब मैं बात करूंगी आपसे, जब मैं हम लेसन स्टार्ट करेंगे, सो आप लोग मेक श्योर करें आपका माइक ऑफ रहे, ठीक है। अगर माइक ऑन रहेगा ना, यस अगर माइक ऑन रहेगा ना तो फिर क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी ना। उस डिस्टर्बेंस से यू विल नॉट लिसन टू मी एंड यू विल नॉट एबल टू लिसन टू मी एंड आई विल नॉट एबल टू लिसन टू यू एंड एवरीबडी गेटिंग मेसी। और क्या हमें ऐसा करना है, एक दूसरे के लिए मुश्किल पैदा करनी है? जी, हमने ऐसा बनना है कि हम एक दूसरे के लिए नेवर नेवर एवर। और रमजान में तो ये हमारी ट्रेनिंग है ना, हमने अपने आप को ट्रेन करना है कि हमने एक दूसरे के लिए बेस्ट करना है और एक दूसरे के लिए क्या करना है, इजी इजी बनना है, इट इजी राइट, इजी राइट इंशाल्लाह। ओके जी, चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। So, ahlan wa sahlan marhaba bikum. Yani, you are most welcome in this beautiful class, the Quran class, and we are going to learn Book of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why हमने क्या लिखा, marhaba bikum, यानी हम सब एक दूसरे को क्या करते हैं, इस खूबसूरत सी क्लास के अंदर जिसमें हम कुरान पढ़ेंगे और हम क्या हैं, पीपल ऑफ द कुरान हैं, है ना। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, मरहबा बिकुम, राइट, अहलन व सहलन। एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, वेलकम ऑल ऑफ यू, वी आर फ्रॉम द हाउस, in this house we are going to learn book of Allah. So how many specials we are, subhanallah, right? Let's start. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. So what we are going to do in our class, inshallah, a little understanding about Surah AlMulk. As you join this course to memorize Surah AlMulk and to learn about Surah AlMulk, कि हमने सूरत मुल्क को हिफ्ज करना है अच्छी तरह और उसको हमने लर्न भी करना है अच्छी तरह इन अ बेस्ट वे। तो बेस्ट वे में कैसे लर्न करेंगे जब वो हमें समझ आएगी ना, तभी हम तो उसको लर्न कर पाएंगे ना। जब वो समझ नहीं आएगी तो हम कैसे लर्न करेंगे उसको, ठीक है ना। So, थोड़ी सी हम उसकी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, समझेंगे मिलके।
थोड़ा सा हम उसमें क्या करेंगे, गुड मैनर्स भी सीखेंगे कि उसमें अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया है, तो हम कुछ एक्शंस पॉइंट भी लेके जाएंगे अपने साथ, कुछ लर्न करेंगे कि एक्शंस पॉइंट हमने अपने एक्शंस पॉइंट कैसे उसको इम्प्रूव करना है इंशाल्लाह, राइट। थोड़ा सा एक्शन पॉइंट के मतलब है लर्निंग पॉइंट्स, राइट। सो उसको मैंने थोड़ा सा और इजी वे में लिख दिया था कि समझ आ जाए आप लोगों के लर्निंग पॉइंट और एक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं, बोथ आर सेम, राइट। तो हम उसको क्या करेंगे कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है ना इंशाल्लाह। फिर थोड़ी सी दुआ, एक दो दुआ भी सीखेंगे इंशाल्लाह, उसको मेमोराइज भी करेंगे, छोटी 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 दुआएं इंशाल्लाह, ठीक है ना, क्योंकि ब्यूटीफुल मंथ ऑफ रमजान, तो रमजान के अंदर हम जितना गुड डीड्स कर सकें। आपको पता है ना कि रमजान में एक गुड डीड्स करने का जो रिवॉर्ड है तो वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, हु नोस, 10 टाइम्स, 70 70%. times. 70. Barakallah. Yes, barakallahu feekum. Very good. 70 times. तो अगर हम एक दुआ सीखेंगे, यानी एक लेटर, एक दुआ के अंदर एक लेटर, एक अरबिक लेटर भी होता है, और अगर हम एक दुआ में एक ब्यूटीफुल वर्ड लर्न करेंगे तो इट्स मीन कि हमें 70 रिवॉर्ड्स मिल गए, राइट। और कुरान का तो एक लेटर भी सीखना, लर्न करना, वन लेटर ओनली, उस पे भी हमें, सोचिए कि नॉर्मल डेज में तो हमें इसको 10 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो हम मंथ ऑफ रमजान में करेंगे तो फिर 70 टाइम्स। सो इंशाल्लाह हम दुआ भी थोड़ी सी लर्न करेंगे और साथ साथ मेमोराइज भी करेंगे इंशाल्लाह, कहूट भी करेंगे, एक्टिविटीज भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उसको हम मेमोराइज भी करेंगे। पहले हम उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उसको फिर हम उसकी ट्रांसलेशन देखेंगे और फिर हम उसको मेमोराइज भी करेंगे, ठीक है ना इंशाल्लाह। और मेमोराइज इस तरह करेंगे कि हम अ, वो हदीस पढ़ेंगे जिसमें हमें हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनर्स के बारे में बताया है, आदाब के बारे में बताया है, राइट। और हम कोशिश करेंगे कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी सनद के साथ हदीस होती है, हम उसको पढ़ें और उसको हम मेमोराइज भी करें। छोटी छोटी हदीस है, लेकिन विद द नरेशंस, विद द ऑथेंटिक नरेशंस, ठीक है ना। नरेशंस का मतलब होता है कि जो रसूल सल्लम की जो हदीस होती है, जो हम पढ़ते हैं ना, अन अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन कॉल समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो हम इस तरह हदीस को इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी, उसका मतलब भी देखेंगे, और फिर उसमें से हम देखेंगे हम क्या मैनर्स सीख रहे हैं हदीस में से, है ना। और यस, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आप लोग के लिए न्यू चीज होगी, तो इंशाल्लाह उसको हम इस तरह पढ़ेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे उसको हम लर्न करें, मेमोराइज करें, ठीक है ना। 2 days होंगी हमारी क्लास, फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे को हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अलमुल्क के ऊपर ज्यादा टाइम लगाएं, और जो सैटरडे डे होगा इंशाल्लाह हफ्ते का दिन होगा, उस दिन हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे वर्क करेंगे। सो डोंट मिस बोथ डेज, ठीक है ना। अगर कोई मिस हो जाती है तो लेट मी आस्क कि टीचर हमें रिकॉर्डिंग सेंड कर दें इंशाल्लाह, बट ट्राई करें क्लास को लाइव अटेंड करने की, ठीक है। जो चिल्ड्रन, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब क्लास को लाइव अटेंड करें और मिस ना करें क्लास। लाइव क्लास जब हम मिस कर देते हैं, सो वी मिस अ गुड चांस। आप लोग गुड चांस, बेस्ट चांस मिस करना चाहते हैं? नहीं ना, मैं तो नहीं चाहती, तो फिर हम भी नहीं चाहते, तो फिर हम क्या करेंगे, लाइव क्लास को एज मच एज वी कैन हम उसको क्या करें, अटेंड करें, ठीक है ना। क्योंकि लाइव क्लास में मजा ही कुछ और आता है, हम पढ़ रहे होते हैं मिलके, हम सीख रहे होते हैं मिलके, है ना, उसकी चार्मिंग डिफरेंट होती है ना। तो फिर हमने क्या करना है, कोशिश कि हमने लाइव क्लास अटेंड करनी है इंशाल्लाह। और जितने बच्चों ने रजिस्टर्ड किया है इस कोर्स के लिए, मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे ज्वाइन करें क्लास, और मैं आप लोग की अटेंडेंस भी लिया करूंगी इंशाल्लाह। और जो बच्चा फुल क्लास यानी 2 days को फुल अटेंड करेगा, सो वो उसको मैं स्टार भी दूंगी, स्टार ऑफ द क्लास ऑफ द वीक भी दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। बट जो बोथ डेज अटेंड करेगा देन इंशाल्लाह, ठीक है। टाइमिंग इस पे डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसको चेंज करना, क्योंकि आपको पता है मैं जहाँ मैं तो यूएस रहती हूँ, तो फिर उसके लिए मेरे लिए भी मुश्किल है थोड़ा सा, और जो है वो आगे पीछे करना टाइमिंग, क्योंकि इस टाइम के बाद आई हैव लाइक वेरी वेरी टफ एंड बिजी स्केड्यूल, ठीक है ना। और इससे पहले जो है वो वाला टाइम थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल, बहुत अर्ली है,
राइट, उसमें फिर ये कि मेरी अपनी इबादत होती हैं. सो या आई नो कि जो जो बच्चे सऊदीया में रहते हैं उनका तरावीह टाइम है. सो व्हाट यू कैन डू, दिस इज योर मेन, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चे सऊदीया में रहते हैं थोड़ा सा अटेंड कर लें क्लास, और फिर जब वो बैक फ्रॉम द तरावी आ जाए तो देन मैसेज मी, इंशाल्लाह आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स ओनली फॉर दोज हु आर इन द क्लास, राइट. सो अगर आप क्लास में हैं और आपने अटेंड की थोड़ी सी, then you need to go to the attend perform the tarawih, then message me, I will share the recording inshallah. ठीक है, it's okay for all of you, the Saudis, जो बच्चे सऊदीया में रहते हैं. Yeah, या जो भी है, मतलब जो सऊदीया के इर्द गिर्द जो भी सराउंडिंग्स में एरिया आता है, तो जाहिर है आप लोग का वो तरावी टाइम है, तो आप लोग थोड़ी सी क्लास अटेंड करें, और अटेंड करने के बाद यू कैन लीव इंशाल्लाह. ठीक है, बट डोंट मिस द रेस्ट ऑफ द क्लास, आपने उसको पूरी कंप्लीट करनी है रिकॉर्डिंग. ठीक है, और जो भी हम उसमें पढ़े क्लास में वो आपने उसको फुल वॉच करके देखना है, और जो भी मैं होमवर्क दूंगी तो वो आपने पूरा कंप्लीट करके देन send me on my number inshallah. Is it okay for all of you? This option is okay for all of you? Give me message, write the message inshallah. Yeah, inshallah. Good job, mashallah. Barakallahu fi. Okay, so let's start inshallah. Good. Okay, so in इस क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम ये तमाम चीजें लर्न करेंगे इंशाल्लाह टुगेदर. और जो सैटरडे वाला दिन होगा उस दिन हम हदीथ की कैलीग्राफी भी करेंगे इंशाल्लाह. और जो फ्राइडे वाला दिन होगा उस दिन हम सूरतुल मुल्क में से एक दो वर्ड्स जो ऐसे वर्ड्स होंगे जो मैं जब हम उसकी मीनिंग समझेंगे, सो फिर मैं चाहती हूँ कि हम उसकी भी कैलीग्राफी करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है जी, इंशाल्लाह. सो ये हमारी थोड़ी सी एक्टिविटी भी हो जाएगी आप लोग की, राइट, इंशाल्लाह. सो लेट्स स्टार्ट विद द दुआ, मोर दुआ इंशाल्लाह. रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाह, ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मुझ पे आसान फरमा दे, और मेरी ज़बान की गिराह भी खोल दे ताकि लोग मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकें. आमीन या रब. इंटेंशंस की दुआ हमें ज़रूर करनी है, कोई भी काम किया करें उसकी इंटेंशंस की दुआ ज़रूर किया करें. दुआ ऑफ इंटेंशंस. हु वांट टू रीड दिस दुआ? one one children for Arabic text and one for English translation, right? Mashallah. So Aruj, you will say the Arabic inshallah, and Hafsa, you will say the English translation. Okay, only two, right? Yes. जी, start करें. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين. This is وَاجْعَلْهُ. وَاجْعَلْهُ. Say. واجعله. Barakallah. Ameen. Ji, Jazakallah khair. Hafsa, you have to read the English translation. O Allah, make my actions, my deeds, all them righteous, and make them only for seeking your face sincerely, purely, and do not make for anyone in it any share. Any share. Ameen. Barakallahu feek. Jazakallahu khairan, both of you, girls. MashaAllah. So, oh Allah, I don't want anybody interference, anybody, किसी की भी मुझे interference नहीं चाहिए, ना ही मेरे मामा की, ना ही मेरे बाबा की, ना ही किसी और की, ना ही मेरी friends की, किसी की भी नहीं. मैं जो भी ये good deeds करने जा रही हूँ, मैं कुरान पढ़ने जा रही हूँ, मैं सलाह पढ़ने जा रही हूँ, मैं अच्छा काम करने जा रही हूँ, कोई भी खैर का काम करने जा रही हूँ, सदका देने जा रही हूँ, Allah, I'm doing only for you, right? मुझे किसी की भी इसमें कोई interference नहीं चाहिए, right? This dua is like for the purpose of this dua is like this, inshallah. Okay, next dua we have dua for knowledge. I also want two kids जिन्होंने पहले कर लिया है वो hand अपना raise नहीं करेंगे. बारकल्लाह. अब जिन्होंने नहीं किया वो अपना hand raise करेंगे. Aisha and Abu Bakr. Sorry. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam. Okay, so Rayyan and Abu Bakr and Aisha. Abu Bakr and Aisha, both of you will say the Arabic text, inshallah, and Rayyan, you will say the English translation, okay? Allahumma bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Barakallah. Ameen. Abu Bakr, you want to say? ये अबू बकर थे या आयशा थी? Is not here. अच्छा, sorry. Aisha, you? He gone from he went for Tarabi. Okay. चले जी, रैयान आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ें। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge. आमीन। बारकल्लाहु फीकुम, both of you. बारकल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Who's there? शहरियार, शहरियार, कैसे हैं आप? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, थोड़ा सा दुआ को देख लेते हैं। हमने जो दुआ पढ़ी थी, दुआ ऑफ नॉलेज, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, है ना? इल्मन नाफिया का मतलब क्या है कि मैं क्या आपसे मांग रही हूँ, ओ अल्लाह, या मांग रहा हूँ इल्मन नाफिया। इल्मन मीन्स नॉलेज, नाफिया मीन्स बेनिफिशियल, कि मैं आपसे बेनिफिशियल नॉलेज मांग रही हूँ। ठीक है, बेनिफिशियल नॉलेज कौन सा होता है? वो नॉलेज जिससे हमें पता चले हमें किधर जाना है, राइट? हमने किधर को जाना है, राइट वे जाना है या रॉन्ग वे जाना है। सो बेनिफिशियल नॉलेज कौन सा होगा? जो हमें क्या बताएगा? राइट वे। और जो बेनिफिशियल नॉलेज नहीं होगा वो क्या बताएगा हमें? रॉन्ग वे, राइट? और राइट वे का मतलब है कि हम उसमें जान सकेंगे कि व्हाट इज हलाल, कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या हुक्म दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या खा सकते हैं हम, है ना? तो वो क्या खाना है, हमें हलाल खाना है या हराम? नो, हराम इज अ रॉन्ग वे, राइट? सो वो तो हमें अल्लाह ताला ने मना किया है, राइट? तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम नॉलेज लेंगे, इल्म लेंगे, है ना? जब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हम हदीस को पढ़ेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, राइट? तभी हमें पता चलेगा कि हमें किधर को जाना है, राइट वे जाना है या रॉन्ग वे जाना है। ठीक है ना? हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा, है ना? अब मैं आपसे कहूँ कि आप क्या करें, मुझे करके बताएं कि 2 + 2 क्या होता है। इफ यू डोंट नो 2 + 2, आपने उसको पढ़ा ही नहीं, आपने मैथ्स पढ़ी नहीं है, तो क्या आप मुझे आंसर करेंगे? आपको मैथ्स, आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, आपको मैथ्स, यू डोंट नो अबाउट द मैथमेटिक्स, तो क्या आप मुझे आंसर करेंगे 2 + 2 का? No. नो, राइट? नो। आपने स्कूल में पढ़ा मैथमेटिक्स, 2 को हम प्लस करते हैं 2 में, हमारे पास आंसर होता है 4। यू लर्न इन योर स्कूल, ठीक है ना? तब आपको पता चला ना? यस, हमें पता चला दिस क्योंकि मैंने इसका नॉलेज लिया। ठीक है, तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि हराम क्या है और हलाल क्या है, जब मुझे नॉलेज ही नहीं होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने किधर जाना है, राइट वे जाना है या रॉन्ग वे जाना है? तो मुझे नॉलेज के लिए हराम और हराम, नॉलेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जी, हमें क्या करना पड़ेगा? Quran पढ़ना पड़ेगा. ओनली कुरान? We have to pray. नमाज भी. हमने ओनली कुरान पढ़ना पड़ेगा? नमाज भी. यस, बारकल्लाह, कुरान एंड हदीस बोथ टुगेदर, राइट? और हमने इसको पढ़ना नहीं, अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा, राइट? तब जाके हमें पता चलेगा कि व्हाट इज अ हलाल एंड व्हाट इज अ हराम, है ना? और हमें कोई दूसरा पर्सन बता रहा हो ये हराम है, ये हलाल है, किसी के पर्सन, किसी शख्स के बताने से क्या हमें पता चलता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? No. नो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उस पर्सन को सुनना चाहिए? No. नो, राइट? तो फिर हमने उस पर्सन को ऐसे नहीं कि मुझे आपको नहीं सुनना, नो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, उस पर्सन को अगर वो बता रहे हैं हमें, इट्स ओके, हमने सुन लेना है, ठीक है, रिस्पेक्टफुली सुन लेना है, पर हमने उसको फॉलो नहीं करना। वी डोंट नीड टू फॉलो, राइट? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाना है? हमने कुरान देखना है, कुरान पढ़ना है अच्छी तरह, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसका इल्म लेना है, और फिर साथ साथ हमने ये भी इल्म लेना है कि हमारे मेरे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे क्या बताया है, ठीक है, और मैंने उनको ही फॉलो करना है इंशाल्लाह। ठीक है जी। और जैसे कि कुरान, फॉर एग्जांपल, कुरान आपसे पढ़ने कहूँ मैं, इफ यू डोंट नो द रीडिंग, कैन यू रीड द कुरान? इफ यू डोंट नो, इफ यू डोंट नो द अरबिक लेटर, कैन यू रीड द कुरान? No. नो, राइट? तो फिर हमने क्या करना है? कुरान को लर्न करना है, और
कुरान को लर्न करने का तरीका हमें किसने बताया? The way of reading Quran. Who tells us? Prophet Muhammad. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Very good, mashallah, barakallahu feek. Right. So हमने किसके तरीकों को follow करना है? Only and only Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Right. Then Yes. we will able to perform. We will able to go on the right way. Right, inshallah. Very good job, mashallah, barakallahu feekum. Similarly, there are many things, many good actions like perform salah. Salah पे जब हम उसको learn करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमने इसको कैसे perform करना है. Fasting हमें पता ही नहीं कैसे करना है, तो हम किसको देखेंगे, किसके तरीकों को देखेंगे? मामा को देखेंगे कि मामा कैसे fasting करती हैं, कुरान को, या बाबा को देखेंगे? प्रॉफिट ने जो बताया है. यस, बारकल्लाह, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें, हम वो तरीका देखेंगे ना, है ना? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या हुक्म दिया है रोजे के बारे में, फास्टिंग के बारे में, तो हम वो देखेंगे, ठीक है ना? सो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टू डू, how to do and when to do, right? That's why we are asking to this dua to Allah subhanahu wa ta'ala, and then we have to apply these knowledge, inshallah. Okay, inshallah. So Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Oh Allah, send blessings of Muhammad sallallahu alayhi wasallam and on the family of the Muhammad. Ameen ya Rab. Okay, every good deeds I only need to do for my success, and I want to do only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, right? मुझे किसके लिए करना है? Allah subhanahu wa ta'ala के लिए करना है, only and only. Or I want my success. I want successful person in this world, and I want success on the day of judgment when I will meet with Allah subhanahu wa ta'ala. और आपको पता है वो success क्या होगी? Success होगी then we will get Jannah. और जब Allah subhanahu wa ta'ala हमसे happy हो जाए, pleasure हो बहुत सारे, please Allah subhanahu wa ta'ala pleased with me, this is the success. और अल्लाह को please करने के लिए, अल्लाह को happy करने के लिए हमने क्या करना है? कौन बताएगा? मम्मा पापा की बात सुननी है, कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़ना है. So it's mean all good deeds, right? All good deeds I have to do only for who? Mama? Allah, Allah. Only for Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है ना? मामा क्या आपको नमाज पढ़ने के लिए, तो आप कहेंगे मुझे नमाज पढ़नी है, मामा ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने के लिए, तो ये गुड डीड्स अल्लाह ताला आपसे गुड डीड ऐसे चाहते हैं? मामा ने कहा नमाज पढ़ने की तो नमाज पढ़नी है, यस और नो? नो, राइट? तो मैंने नमाज पढ़नी है, क्यों? क्योंकि अल्लाह मुझसे चाहते हैं, है ना? मैंने रोजा रखना है, क्यों? क्योंकि मैंने अल्लाह ने मुझे बताया है और अल्लाह ने मुझसे कहा है कि मैंने रोजा रखना है, राइट? And Allah is always happy if we always yes. pray और आपको पता है, बारकल्लाह, और आपको पता है वन थिंग, अगर आप चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपसे हैप्पी हो, अल्लाह ताला हमसे हैप्पी हो, हमें कैसे पता चलेगा? how we know that Allah is happy from us? क्या हम देख रहे हैं अल्लाह ताला को? हमने अगर कोई गुड डीड किया तो अल्लाह ताला, मैं देख रही हूँ अल्लाह ताला को, मुझे पता है अल्लाह ताला मुझसे हैप्पी है. how can we feel like this? Can we see to Allah is happy now? मैंने तो कुछ good deeds किए हैं तो Allah is happy with me. How we can know? How we can know? बताऊं मैं? Because Allah is always happy if we do some deeds. And how we know that if Allah is happy, I'm going to do good deeds and Allah is happy with me? How we know? जी ज़ोहा बताएं. Allah is giving us everything. Allah is giving us everything. It can be, yes, ये भी हो सकता है. Listen our prayers. Good answer. So the best answer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam जो हमें बताया है, Accept our duas. Accept our duas. Yes, good, mashallah. So the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने जो हमें बताया है वो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे हैप्पी हो, हमें कैसे पता चलेगा? You can see your parents
if your parents are happy from you, so it's mean that Allah Allah is is also happy to you. happy. Yes, ठीक है ना? So हमने क्या करना है? अपने पेरेंट्स को हैप्पी रखना है इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने अल्लाह को हैप्पी करना है तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी हैप्पी रखना है. और अगर याद रखें, एक गुड डीड्स अगर हम स्मॉल गुड डीड्स भी करते हैं with sincerity only for sake of Allah, then Allah subhanahu wa ta'ala उसका रिवॉर्ड इस माउंटेन की तरह बना देते हैं, साइज ऑफ द माउंटेन, राइट, एंड मोर देन, राइट. और अगर हम गुड डीड्स सेक ऑफ अल्लाह नहीं करते, अल्लाह के लिए नहीं करते, तो अल्लाह ताला हमारी गुड डीड्स को ऐसे कर देते हैं जैसे इस सहरा की मट्टी, डस्ट, लाइक अ डस्ट. हमारी अल्लाह ताला को हमारी डीड्स की जरूरत नहीं होती, अल्लाह ताला हमारी डीड्स को ऐसे बना देते हैं लाइक अ डस्ट, जैसे उड़ गई, राइट. सो नो रिवॉर्ड्स, डस्ट की तरह उड़ जाती है बस, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं होता अगर हम अल्लाह ताला के लिए गुड वर्क नहीं करते. ठीक है. सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इंशाल्लाह. और स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह अपनी सूरा को आज, अल मुल्क इंशाल्लाह. सो अल मुल्क को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम उसका थोड़ा हम अल्लाह ताला के इसमें नाम, कुछ नाम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. और अल्लाह ताला के मोस्ट ब्यूटीफुल नाम, नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अस्माउल हुस्ना क्या है? अल्लाह. This is the real name of Allah, original name Allah, the only one God. Is mean only one God. And Ar-Rahim, Ar-Rahim is mean Allah is the most merciful, bestower of mercy, right? Only for the believers. Ar-Rahman, Allah is most merciful. And Ar-Rahim का एक माना और भी किया जाता है कि Allah is the entire merciful, right? And Ar-Rahman, Allah is the most merciful. And Al-Ghaffar, the all, Allah is forgiving, all forgiving. Allah Ta'ala बहुत गफ्फार है, गफूर है, माफ करने वाले, right? Allah subhanahu wa ta'ala क्या है? All forgiving, the all forgiving, right? And Al-Aziz, the Almighty. Allah is Al-Aziz, right? Or why Allah is Al-Aziz? Because Allah gave us everything, right? Allah protect us if we sincere with Allah, right? और Allah subhanahu wa ta'ala क्यों अजीज है? Why Almighty है? क्यों? क्योंकि Allah subhanahu wa ta'ala ने हमें बहुत सारी blessings दी हैं. उसमें सबसे नंबर 1 कुरान and Islam. This is the best blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, right? Or Malikul Mulk. Malikul Mulk is also the Asmaul Husna, names of Allah subhanahu wa ta'ala. ये भी अल्लाह ताला का नाम है, Malikul Mulk, right? Al-Mulk. और सूरह का नाम भी यही है हमारी, Al-Mulk, right? Master of kingdom, owner of the all kingdom, dominant. Allah Malikul Mulk. और अल्लाह क्या है? Malikul Mulk क्या मतलब? He is the master, only master and ruler. Allah subhanahu wa ta'ala ही master है इस दुनिया के, पूरी कायनात के, और यहाँ भी, और जब डे ऑफ जजमेंट होगा तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही मास्टर होंगे. एंड रूलर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तमाम यूनिवर्स के रूलर हैं, रूल करते हैं. अल्लाह ताला ने ही सबको क्रिएट किया है और अल्लाह ताला ही सबको ऑर्डर करते हैं, हुक्म करते हैं, और हर कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऑर्डर को पे चलता है, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो क्लाउड्स हो, चाहे वो स्काई हो, आसमान हो, चाहे आसमान के ऊपर सूरज हो, सितारे हो, चांद हो, हर कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की को रिमेंबर रखता है, तस्बीह करता है ना. Make us remember the day of recompense, यानी day of judgment, in our words and deeds, to be truly reflect on your kingdom and be humbled by it, right? So Al-Malikul Mulk का क्या मतलब है? Master of the kingdom. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही मास्टर हैं, ठीक है ना. सो इंट्रोडक्शन ऑफ सूरतुल मुल्क स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा तारुफ सूरतुल मुल्क का. और तारुफ क्या है अल-मुल्क का, इंट्रोडक्शन क्या है अल-मुल्क का. जाहिर है हम एक न्यू चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. जब हम किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं तो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, है ना. My name is this. My name is Zoha and I am 8 years old, right? This is my introduction. मैं पाकिस्तान से हूँ, but I'm living in this country, right? And I read in I am in class
1, 2, 3, 4, whatever, right? I'm in grade 1, 2, 3. So this is my introduction. If I'm meeting with some in front of other person, first I need to introduce myself, ठीक है ना? So कुछ भी start करने से पहले हमने अपना introduction देना है. तो सूरह मुल्क का introduction क्या है? तारुफ क्या है? कि सूरह मुल्क जो है मक्की सूरह है. मक्की का मतलब होता है those सूरह was revealed in the मक्का. उनको कहते हैं मक्की. Yeah, और उनको हम क्या कहते हैं? मक्की सूरह, right? वो सूरह जो मक्का में रिवील होती है उनको मक्की कहते हैं. वो सूरह जो मदीना में रिवील हुई है उनको हम मदनिया सूरह कहते हैं. ठीक है ना? बस सूरह मुल्क क्या है? मक्की सूरह. और इस सूरह में कितनी आयत हैं? 30 आयत हैं, यानी 30 वर्सेस हैं इस सूरह के अंदर, राइट? और इस सूरह में जो हरूफ हैं, यानी इस सूरह में जो लेटर्स हैं वो कितने हैं? 1330. ये इस सूरह में क्या है? हरूफ हैं, लेटर्स हैं. और इस सूरह में कितने वर्ड्स हैं? कलिमात 330 कलिमात है, यानी वर्ड्स, वन वर्ड, ठीक है ना? 1, 2, 3 होल वर्ड्स, 330 कलिमात है इस सूरह में. ये सूरह रिवील्ड हुई थी बिगिनिंग टाइम ऑफ नबुवा, यानी जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी बनाया था. या सो व्हेन प्रॉफिट सल्लम बिकेम अ प्रॉफिट, उस वक्त इनिशियल टाइम में, बिल्कुल बिगिनिंग टाइम में, उस वक्त ये सूरह मक्का में रिवील हुई थी. ठीक है? जब प्रॉफिट सल्लम ने दावा इस्लाम को मैसेज देना स्टार्ट किया था मक्का के पीपल्स में, तब ये सूरह क्या होती? रिवील हुई थी. ठीक है ना? क्योंकि जो पीपल ऑफ द मक्का थे वो तो बात ही नहीं सुनते थे. वो कहते थे कि हम, अगर आप हमें अल्लाह की दावत देते हैं, एक अल्लाह की इबादत करने कहते हैं, तो हमें प्रूफ करके दिखाएं कि ये सब अल्लाह ने बनाया है, राइट? बट दे बिलीव ऑन अल्लाह. जो पीपल ऑफ द मक्का थे, कुरैश थे, दे बिलीव ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज उनका रिलीजन क्या था? द रिलीजन बेस्ड ऑन द प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम. ठीक है ना? सो वो they are familiar with Allah, they know Allah, they know one God, they know one Allah, but वो उनका जो बिलीफ था, उनकी जो वर्शिप्स थी, जो इबादत थी उनकी, वो क्या थी? ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन. वो क्या थे? आइडल वर्शिपर्स थे. और वो कहते थे हम तो वही करेंगे जो हमारी नानी ने बताया, जो हमारे दादा ने बताया, जो हमारे मामा बाबा ने बताया हमें, वी विल फॉलो देम. ठीक है ना? वो ये कहते थे. और सम ऑफ देम आर आइडल वर्शिपर्स टू. वो आइडल वर्शिप करते थे और इस तरह की तमाम इबादत वो किया करते थे. ठीक है? रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे. सो प्रॉफेट सल्लम जब आए, उनको बताया कि नहीं, यू हैव टू वर्शिप ओनली वन अल्लाह सिंसियरली. तो वो कहते थे कि हम कैसे करें, हम कैसे माने, हमें एक दिखाएं, करके दिखाएं ये सब चीजें जो आप कह रहे हैं हमें. ठीक है? तो तब ये सूरह मक्का में रिवील हुई थी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लम के हार्ट पर, राइट? दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सूरतुल मुल्क. और फिर सूरतुल मुल्क की हम थोड़ी सी वर्ड्स देखते हैं, उसकी क्या अहमियत है, हम क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं. वैसे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सारी किताब, पूरी किताब इम्पोर्टेंट है ना, अहम है, लेकिन सूरह मुल्क इसके कुछ मजीद और मोर वर्च्यूज हैं हमारे सामने. वो क्या है? वो हम हदीस से देखेंगे, रसूल सल्लम की हदीस से. क्या है कि रसूल सल्लम ने क्या बताया कि जो सूरह मुल्क है वो, आपको पता है ना, एवरीवन शुड बी डाई, है ना? हम सबको क्या करना है? अल्लाह ताला की तरफ टर्न बैक, लौट के जाना है ना? यानी लौट कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे अलाइव? नहीं, वी ऑल मस्ट डाई and then we return back to Allah subhanahu wa ta'ala, क्योंकि हम सबको अल्लाह ने बनाया है. and then अल्लाह subhanahu wa ta'ala ने हमें क्या कहा है? you have to return back to me. और then why return back to me? क्योंकि फिर अल्लाह ताला हमारे एक्शंस को करके काउंट, हमारा जो रिजल्ट होगा फिर हमारे पास आएगा ना ऑन द डे ऑफ जजमेंट में. इसलिए हमें रिटर्न बैक होना अल्लाह ताला के सामने. ठीक है ना? सो जब हम रिटर्न बैक हो जाते हैं, यानी when the person goes into the grave, जब ग्रेव में जाता है तो क्या होता है? अगर उसने सूरत मुल्क पढ़ी होती है तो वो क्या करता है? वो उसके लिए इंटरसीड बन जाता है, यानी कि उसके लिए गवाह बन जाता है. और वो क्या कहता है अल्लाह ताला से? वो फाइट करता है. सूरह मुल्क फाइट करेगी अल्लाह ताला से. और जब हम ग्रेव में जाएंगे, अल्लाह ताला के पास जाएंगे, तो वो वहां भी हमारे साथ होगी सूरह मुल्क. और वो अल्लाह ताला से क्या कहेगी? ओ अल्लाह प्लीज फॉरगिव दिस पर्सन, बिकॉज ये जो शख्स है इसने मुझे पढ़ा था, ये मुझे पढ़ता था.
please forgive this person, please forgive this person. कितनी बड़ी बात है ना, it's amazing कि सूरह मुल्क पढ़ने वाले, जो सूरह मुल्क पढ़ेगा उसको, उसके लिए ये क्या करेगी, गवाह बन जाएगी, राइट? और ये सूरह क्या करेगी, the intercede the person until person will forgive him. जब तक अल्लाह उस पर्सन को forgive ना कर देंगे, वो सूरह मुल्क अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करती रहेगी, oh Allah please forgive this person, oh Allah forgive this person. Isn't it amazing? है ना, amazing है कि नहीं है? Yes or no? It is, yes. So मैं चाहती हूँ कि एक कोई बच्चा हैंड रेस करे जो ये इंग्लिश पढ़ सके इस हदीस की। अरूज आपने पहले पढ़ लिया था ना, फातिमा आप पढ़ें, ठीक है? Okay. Narrated Abu Huraira that the Prophet said, "Indeed, there is a surah in सल्लल्लाहु the अलैहि Quran." वसल्लम, when prophet, जब prophet आए तो 30 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला ayat. करें, okay? फातिमा। Okay. 30 ayat which intercedes for a man until he is forgiven. It is Surah Tabarak Alladhi Biyadil Mulk. रेफरेंस पढ़ें इसका। Jamia al-Tirmidhi 2891. बारकल्लाहु फीक। यानी प्रॉफेट सल्लम क्या कह रहे हैं हमसे कि कुरान के अंदर एक सूरा है जिसकी 30 आयात हैं, और जब एक शख्स, रिजुलन, रिजुलन कहते हैं शख्स को, शख्स जब कोई इसको पढ़ता है तो वो शख्स के लिए क्या बन जाती है, मगफिरा की दुआ करती है, मगफिरा के लिए खड़ी हो जाती है कि अल्लाह ताला के नजदीक, ओ अल्लाह फॉरगिव दिस पर्सन। और ये कौन सी सूरह है, सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, है ना? कितनी बड़ी, इतनी प्यारी इसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी इंफॉर्मेशन दी है, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट इसकी वर्च्यूज क्या हैं? और वो वर्च्यूज हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये सूरा क्या करती है, पनिशमेंट ऑफ द ग्रेव्स से हमें बचाती है ना? जो शख्स को पढ़ता है वो क्या होता है, डिफेंडर है। दिस सूरा इज द डिफेंडर फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ द ग्रेव, ठीक है? कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हियल मानिअतु हियल मुंजियतु तुंजीही मिन अज़ाबिल क़ब्र। कौन बच्चा इसको रीड करेगा, इसकी ट्रांसलेशन इस हदीस की? आई वांट समवन। यस जोहा। The Messenger of Allah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, "It is the defender, it is the deliverer, it delivers from the punishment of the grave." ग्रेव। रेफरेंस पढ़े। Jamia तिर्मिज़ी Jamia Tirmizi 2089. 890। बारकल्लाह, वेरी गुड। सो ये सूरह क्या, ये सूरह क्या है कि दिस सूरह इज द डिफेंडर, डिफेंड करती है punishment of the grave, right? So this is the second virtue of this surah. The third virtue of this surah is, this is the another virtue. Wow, subhanallah. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. अब इसकी मीनिंग पढ़ें, कौन पढ़ेगा? रेज योर हैंड। जो पढ़ चुका है वो ना करे, चांस टू अदर्स वन, राइट? हरी अप, ट्रांसलेशन पढ़नी है इसकी। अफसा। The Prophet sallallahu alaihi wasallam would not sleep until he recited Alif Lam Mim Zal Tanzil and Tabarak Allahi Biyadihil Mulk. तबारक الذي بيده الملك। Tabarak Allahi रेफरेंस पढ़े। Jami al-Tirmidhi 2892. बारकल्लाहु फीक, माशाअल्लाह। सो क्या हमने इसमें से सीखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would not sleep until he recited two surah. One surah is Alif Lam Mim Tanzil, this is the one surah, and the another one is Tabarakalladzi biyadihil mulk, yani Suratul Mulk. Prophet sallam सोते नहीं थे
जब तक वो ये 2 सूरह नहीं पढ़ते थे। यानी जब वो बेड पे गए अपने, तो उन्होंने सबसे पहले क्या पढ़नी है, ये 2 सूरह पढ़नी है। 2 सूरह कौन सी है? दिस सूरह नेम इज अलिफ लाम मीम सजदा एंड दिस सूरह नेम इज सूरतुल मुल्क। ठीक है ना? सो हमने भी क्या करना है, जब हम अपने बेड पे जाएं सोने से पहले क्या पढ़ें? सूरतुल मुल्क। क्योंकि हमने यहाँ से ये सीखा आज कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरतुल मुल्क पढ़ा करते थे। पढ़नी है आप सबने कि नहीं पढ़नी? हाँ, हैंड रेस करें किस किसने पढ़नी है। इंशाअल्लाह सोने से पहले अब आपने सूरतुल मुल्क पढ़नी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह every day. माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक। जो नहीं पढ़ता तो अब पढ़ना शुरू कर दे। राइट, ओके, चलें जी, थोड़ा सा हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा सा मीनिंग देखते हैं और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसमें क्या क्या सीखा है। आज हम 2 आयत करेंगे इंशाल्लाह और इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارك الذي تبارك blessed الذي he blessed यानी किसकी तरफ बात हो रही है? blessed he is. Allah is the तबारका यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही सबसे ज्यादा ब्लेस्ड देने वाले हैं। ठीक है, ब्लेसिंग, और वो ही सबसे ज्यादा प्योर हैं, ब्लेस्ड हैं। राइट, और कौन है? बियदिहिल मुल्क इन हुज हैंड द डोमिनेंट, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में तमाम किंगडम है। अल मुल्क मींस किंगडम, हमने पढ़ा था ना स्टार्ट में। वह हुआ और कौन है अल्लाह? and he ala over kulli every shay'in thing qadir, all powerful. All power is only in Allah's hand. समझ आया मीनिंग? अब कि हम क्या पढ़ते हैं? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क कि अल्लाह he is the blessed only, सबसे ज्यादा प्योर, सबसे ज्यादा ब्लेस्ड वही है। राइट, अल्लाह का नाम ही सबसे ज्यादा ब्लेसिंगफुल है। अल्लाह ही सबसे ज्यादा ब्लेसिंग देते भी हैं और वो ब्लेसिंग देने ही वाले हैं और वो ही सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हैं। ठीक है, बियदिहिल मुल्क यानी बियदी का मतलब होता है कि हाथ में, यानी अल्लाह के ही हाथ में क्या है? अल मुल्क, तमाम किंगडम है। होल किंगडम इन अल्लाह's हैंड। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है? और अल्लाह कौन है? जिसकी पावर हर चीज पर है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, ह्यूज हो या स्मॉल, टाइनी 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 जो हम देख भी नहीं सकते, है ना? अल्लाह के ही पास तमाम पावर है। कदीर मींस ऑल पावर। ठीक है, ब्लेस्ड इज ही इन whose hand is the dominant यानी किंगडम and he has the power over everything. ठीक है, यानी यहां से हमें क्या पता चला इस आयत से कि इस आयत में, आयत नंबर 1 में हमने क्या लर्न किया कि अल्लाह इज who is Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala is blessed and he is only he is who his hand all kingdom, अल्लाह के हाथ में ही तमाम किंगडम है। ठीक है, अल्लाह ही तमाम, अल्लाह इज द रूलर। राइट, अल्लाह तमाम चीजों को रूल करते हैं, हर चीज को, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो क्लाउड्स हो, उसके ऊपर स्काई हो, हर चीज को। ठीक है, आपने कभी देखा एक छोटी सी छोटा मॉलिक्यूल भी होता है, हम उसको नहीं देख सकते, बट उस मॉलिक्यूल वो भी हमारी बॉडी के अंदर चल रहा होता है ना, हम उसको नहीं देख सकते अपनी नेकेड आई से। राइट, अपने सेल्स को हम नहीं देख सकते, लेकिन उसको भी, उसके ऊपर जो पावर है वो किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको पावर दी है कि वो हमारी बॉडी में क्या करे? रेगुलेट कर सके, हमारे खून को सर्कुलेट कर सके। उस छोटे से सेल की वजह से हमारा खून, हमारा ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अल्लाह ने उसको पावर दी है, अगर वो ना करे हमारी बॉडी में सर्कुलेट ब्लड ही ना हो। राइट, कैन यू इमेजिन? सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही क्या है? हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं, कादिर है, कदीर। ठीक है, हमें इस आयत से, आयत नंबर 1 से हमने ये लर्न किया। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम चीजों पे कुदरत रखने वाले हैं तो फिर हमने
दूसरों से मांगना चाहिए, दूसरों पे ट्रस्ट करना चाहिए? No. नो, राइट? क्योंकि तमाम किंगडम, तमाम पावर तो किसके पास है? अल्लाह के पास है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और हमें कहां से पता चला? हमने आज यहाँ इस आयत से लर्न किया कि वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, है ना? हमने आज इस आयत से क्या लर्न किया कि ऑल पावर इन whose hand? Allah's hand, ठीक है? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही क्या है? किंगडम है, किंग है। तमाम किंगडम, होल जो यूनिवर्स है, कौन सी किंगडम? जो यूनिवर्स है, द होल यूनिवर्स, उसके अंदर जो भी चीज आती है, उसकी जो उसका जो किंग है वो कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है? यानी हर चीज अल्लाह ने क्रिएट की और हर चीज की पावर अल्लाह के पास है ना? और हर चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी ब्यूटीफुल क्रिएट की है ना? हम अगर स्काई के वो देखें, अल्लाह ताला ने स्टार्स बनाए हैं कितने प्यारे प्यारे हैं, और अगर हम स्काई पे देखते हैं तो कितने खुश होते हैं ना, हैप्पी होते हैं ना, स्टार्स इतने प्यारे नजर आ रहे हैं हमें, सन निकलता है, रोशनी देता है हमें, जहाँ पे सर्दी होती है वहां पे सन निकल जाता है तो हम कितना कहते हैं आज सन आ गया, वाओ, हमें आज एनर्जी मिलेगी, हमें आज हीट मिलेगी, राइट? और जहाँ पे सर्दी गर्मी होती है तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा हमें क्या आ जाए, क्लाउड्स आ जाए, अच्छा मौसम हो जाए, ताकि अच्छी सी हवा चल जाए ठंडी ठंडी। तो हवा क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको पैदा किया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको चलाना है ना? तो वो भी क्या है? द पावर किसकी है उस पे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। हवा भी, विंड भी अल्लाह के हुक्म से चलती है ना? ठीक है ना? और बारिश भी अल्लाह के हुक्म से आती है, ठीक है? सो तमाम पावर किसकी है? अल्लाह की है। और जमीन पे जितनी चीजें हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वो सब किसकी वजह से है? अल्लाह की पावर की वजह से, है ना? तो क्या हमने अल्लाह ताला को अल्लाह ताला का ओबीडियंस बनना है, फर्माबरदार बनना है या नहीं बनना? क्योंकि यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम पावर अल्लाह के पास है, सारी होल यूनिवर्स में, तो हमने किसकी बात मानी है? जी, कौन बताएगा मुझे? जी अल्लाह की। अरूज। अल्लाह की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात माननी है, ठीक है ना? सही है, ठीक है? तो हमने किसकी बात मानी? ओनली अल्लाह की, ठीक? तो हमने आज फर्स्ट आयत से अल-मुल्क की ये लर्न किया। अब चलते हैं सेकेंड आयत की तरफ। सेकेंड आयत हमने, क्योंकि आपने आज ये दोनों अपने टास्क में रखनी है, आपने इसको पढ़ना भी है और आपने इसको मेमोराइज भी करना है, इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है? सेकेंड आया है अल्लज़ी, द वन हु, कौन हु इज हु हियर? अल्लाह, राइट? अल्लाह, अल्लाह। यस, खलका, क्रिएटेड। अल्लाह ने क्या किया? क्रिएट किया है किसको? अल-मौता, डेथ, वल हयाता, एंड लाइफ। यानी जो अल्लाह ने हमें लाइफ दी है वो किसने क्रिएट की है? अल्लाह ने क्रिएट की है, ठीक है? और जब जब कोई डेथ हो जाता है तो वो डेथ जो है किसने क्रिएट की है? डेथ होना वो भी अल्लाह ने क्रिएट किया है, ठीक है? और अल्लाह ने डेथ और लाइफ क्यों क्रिएट की है? व्हाई? अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं? लियबलुवकुम, दैट ही मे टेस्ट यू। अल्लाह ने हमें लाइफ दी है, व्हाई? ही वांट टू टेस्ट अस। He क्या wants to टेस्ट test करना us चाहते हैं? या अल्लाह ताला भी क्या टेस्ट करना चाहते if हैं? we do good deeds or bad deeds. या आगे आयत में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, अल्लाह ताला is telling us too, अय्युकुम, which of you ahsanu, best amala deed, कौन तुम में से सबसे ज्यादा है जो बेस्ट डीड करता है? बेस्ट डीड करके अल्लाह ताला हमें टेस्ट करेंगे, है ना? और अल्लाह ने हमें लाइफ इसलिए दी है, और जब हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमारे गुड डीड्स को रिवॉर्ड में चेंज कर देंगे। And who is Allah? Wahuwa, and Allah, Al-Aziz, the Almighty, and Al-Ghafoor, the forgiving, the all forgiving। कि जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, हम गुड डीड्स नहीं कर पाए, तो हम क्या करें? ताला से फौरन से ask the forgiveness to Allah. Oh Allah, please forgive me. I did some mistake. I didn't listen to my mama. I didn't listen to my baba. Please forgive me. If you are not forgiving me, then I will not able to do more good deeds. And how you will accept my good deeds if I'm doing bad deeds and
after the bad deeds, I'm not realizing it too. अगर मैं इसको रियलाइज भी ना करूं, मैंने कुछ बुरा कर दिया है, रेग्रेट भी ना हो, मुझे बुरा भी ना लगे, मैंने बुरा किया है, मैंने कोई बुरे वर्ड्स यूज किए हैं, है ना, और मैंने नमाज को भी छोड़ दिया, है ना, और नमाज को भी नहीं पढ़ा, मैंने टाइम पे भी नहीं पढ़ा, मामा मुझसे कह रही थी, मामा मुझे रिमाइंडर दे रही थी, मैंने नमाज नहीं पढ़ा, I missed my salah. Oh Allah, please forgive me. I will not do it next time, inshallah. Right? So, this is Allah. क्यों? Allah is al-Ghafoor है ना, Allah subhanahu wa ta'ala में फौरन से forgive कर देते हैं अगर हम sincerely forgiveness ask करें और not repeat our mistakes, right? So Allah ने हमें क्यों पैदा किया है? Second ayat से हमें क्या पता चला? Purpose of life and death. Everyone will be tested with their best actions. हर कोई टेस्ट में है, हमारा टेस्ट हो रहा है. We are on the examination hall. Everyone, हर कोई, मामा, बाबा, my friend, my grandparents, my siblings, हर कोई क्या है? टेस्ट में है. किस टेस्ट में? बेस्ट एक्शन में. कौन सबसे ज्यादा बेस्ट एक्शन करता है? ठीक है. वर्ल्ड लाइफ विल सून डेड. जो हमारी ये जो वर्ल्ड लाइफ है वो क्या है? सून डेड हो जाएगी. बट द हेयर आफ्टर लाइफ, जब हम डे ऑफ जजमेंट में जाएंगे तो वो लाइफ फॉर एवर है. और उस लाइफ के अंदर हमें क्या मिलेगा? अपना रिजल्ट मिलेगा कि हम इस वर्ल्ड लाइफ के अंदर कौन कौन से बेस्ट एक्शन करके गए हैं. एंड देन वी विल रिसीव अवर रिजल्ट आफ्टर द डेथ. ठीक है. सो ये है अल्लाह ताला ने हमें टेस्ट किया है. इस आयत के अंदर हमें क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला? पर्पस ऑफ लाइफ एंड एवरीवन विल बी टेस्टेड विद देयर बेस्ट एक्शन. सो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? फोकस ऑन आवर बेस्ट एक्शन which Allah subhanahu wa ta'ala wants and likes and accept from us, right? So criteria will based on his subhanahu wa ta'ala choice, not on other person's choice and not on our choice. हमारी चॉइस भी नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे तो ये, मैं ये आज कर लेती हूँ, मैं कल नहीं करूंगी, और मैं ये कल, आज तो मिस हो गया तो मैं कल कर लूंगी, ये मैं आज मिस कर देती हूँ तो मैं कल कर लूंगी. Not on our choice, right? Only those best action will accept it in front of Allah. Which action? Which Allah wants from us. वो action जो Allah हमसे चाहते हैं, वो actions क्या होंगे? Acceptable होंगे, है ना जी? Like if we do a test in school, we have also a result there. So if we fail, it means like we have to do the test again. So that happens same with when we die. When we die. Okay. So good question. When you finish your year, your school year, यानी अभी आप क्लास, फॉर एग्जाम्पल क्लास 2 के अंदर है, ठीक है, आपने फाइनल एग्जाम्स देने. योर फाइनल एग्जाम विल कम सून, राइट? योर फाइनल एग्जाम, आप समझे कि मेरा फाइनल एग्जाम टुमारो है. अब मैंने अपने फाइनल एग्जाम के अंदर या तो पास होना है, आई डू माई बेस्ट कि मैंने उसमें पास होना है विद द गुड नंबर्स, राइट? अगर मैं पास नहीं करूंगी तो फिर मैं क्या हो जाऊंगी जी? क्या हो जाऊंगी? फेल हो जाऊंगी. और क्या मुझे दोबारा चांस मिलेगा? नो. यानी मुझे दोबारा चांस नहीं मिलेगा न्यू क्लास में जाने के लिए और न्यू एग्जाम देने के लिए. ठीक है. सो मैंने उसी में बैठना पड़ेगा, उसी क्लास में, क्लास 2 में बैठना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि आई लॉस्ट. ये तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चांस दिया कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, इम्प्रूव करके एक चांस लें दोबारा और उसको दोबारा रिपीट करें. बट व्हेन वी डाई, जब हम खत्म हो गए, फिनिश हो गए, यानी जब आपने बुक पढ़ ली, आपने अपना स्कूल डन कर लिया, खत्म हो गया, सो यू विल नॉट एबल टू रिपीट योर स्कूल अगेन, राइट? देन यू मूव टू अनदर स्टेप. सो बट वहां क्या होगा? डे ऑफ जजमेंट में क्या होगा? जब आपकी डेथ हो गई तो आप खत्म हो गए, फिनिश, आपकी बुक खत्म हो गई, क्लोज हो गई. ठीक है. सो यू हैव नो मोर चांस, वी हैव नो मोर चांस. वो चांस खत्म, फिनिश, खलास. ठीक है, नो मोर चांस. तो जब लाइफ अल्लाह ताला ने हमें दी है, सो इसमें जब तक हम अलाइव हैं, एंड वी डोंट नो व्हेन, टिल देन व्हेन वी आर अलाइव, राइट? इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह. अल्लाह ताला ने हमें टाइम दिया है, सो हर टाइम को हमने बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है कि वी डोंट नो, नो एनीबडी नोज कि कौन किस वक्त अल्लाह ताला के पास चला जाए, किसी को नहीं पता. ठीक है, तो हमने अपने हर बेस्ट एक्शन को, बेस्ट टाइम को क्या बनाना है?
बेस्ट बनाना है इंशाल्लाह, ठीक है ना? डिड यू गेट माय पॉइंट? इट वाज अरूज और नॉट? यस इट वाज अरूज। जी अरूज बेटा, डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes. यस अल्हम्दुलिल्लाह। सबको समझ आ गया कि हमें वी डोंट नो कि हमने अल्लाह ताला के पास कब जाना है, नोबडी नोज, राइट? तो जब हमें नहीं पता तो हमने क्या करना है, Yes. अपने, हाँ जी, अपने टाइम को बेस्ट बनाना है इंशाल्लाह, ठीक है? और जब एक दफा खत्म हो जाते हैं, बुक चैप्टर खत्म हो जाता है, तो फिर वो यानी जब डेथ हो जाती है, नोबडी कम बैक अगेन, वो अल्लाह ताला के पास चला जाता है, राइट? सो हमने अपने हर एक्शन को क्या बनाना है, बेस्ट बनाना है इंशाल्लाह, ठीक है? और रसूल सल्लम की हदीस से हमें क्या पता चलता है कि व्हाट इज द बेस्ट डीड लेवल, बेस्ट डीड लेवल क्या है? अब हमने ये चेक करना है कि डिग्री ऑफ लेवल बेस्ट, डिग्री ऑफ बेस्ट बैड डीड्स क्या है, यानी कि लेवल ऑफ बैड डीड्स क्या है? तो रसूल सल्लम कहते हैं, रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह यंजुरु इला सूरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। व्हाट इज मीन दिस? रसूल सल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह डज नॉट लुक एट योर अपीयरेंस, यानी बैड डीड्स बेस्ट डीड्स हमें कैसे करना है? क्या हमें ये दिखाना है कि देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, दिस इज द बैड डीड्स, बेस्ट डीड। देखो मेरे कपड़े कितने अच्छे हैं, मैंने तो आज उस ब्रांड के कपड़े पहने हैं, मैंने तो आज उस ब्रांड का मोबाइल लिया है, उस कंपनी का मोबाइल लिया है, मेरे पास तो इतनी अच्छी गाड़ी है। अपीयरेंस, अल्लाह ताला को हमारे अपीयरेंस की जरूरत नहीं है, डजंट नीड। और ना ही अल्लाह ताला को जरूरत है किस चीज की, हमारी वेल्थ की, हमारे माल की, है ना? तो अल्लाह ताला को दो चीजों की जरूरत नहीं है, अल्लाह डजंट वांट दिस, ना ही हमारा अपीयरेंस, ना ही हमारे कपड़े, ना ही हमारी गाड़ी, ना ही हमारा घर, ना ही ये देखेंगे अल्लाह ताला के हमारे घर में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि वो तो अल्लाह ने दिए ना हमें। वो किसने दिया हमें? अल्लाह ने दिया है ना? तो अल्लाह ताला को हमारी इन चीजों की जरूरत नहीं है, और अल्लाह ताला ये भी देखता है कि हमारे पास कितना पास पैसा है, कितना हमें अल्लाह ताला ने दिया है, राइट? तो वो तो अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला को इन चीजों की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला क्या देखते हैं? He looks at our heart and our actions, कि किसका हार्ट प्योर है और किसका एक्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है, राइट? तो हमने क्या करना है? यस, अपीयरेंस डजंट मैटर, आवर एक्शंस मैटर। एग्जैक्टली, बारकल्लाह। तो हमने अपना लेवल, बेस्ट डीड लेवल कैसे चेक करना है? कि मैं कैसे चेक करूंगी अपना बेस्ट लेवल? क्या क्राइटेरिया है बेस्ट लेवल का? बेस्ट लेवल का क्राइटेरिया है, अहसन अमल का क्या क्राइटेरिया है? अकॉर्डिंग टू द कुरान विद इखलास, फॉर सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो हमें कुरान ने बताया है इखलास के साथ हमें वो करना है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमें वो देखना है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, हमने उनको फॉलो करना है, ठीक है? यानी कुरान में जो अल्लाह ने बता दिया हमें, हमें वो फॉलो करना है, और हमने किसको फॉलो करना है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, राइट? दीज टू क्राइटेरिया आर बेस्ड ऑन बेस्ट एक्शन, अहसन अमला। ठीक है जी, समझ आ गया ना? मुझे तो नहीं लग रहा। अब बेस्ट एक्शंस क्या होते हैं? लेट्स काउंट द बेस्ट एक्शंस। बेस्ट एक्शंस दो तरह के, बेस्ट एक्शंस इन आवर मैटर्स, बेस्ट एक्शंस इन आवर वर्शिप्स, यानी हमारी इबादा में बेस्ट एक्शंस कौन से हैं, और हमारी मैटर्स में बेस्ट एक्शंस, मामलात में बेस्ट एक्शंस कौन से हैं। इबादा में कौन से हो गए? सला, फास्टिंग, रिसाइटेशन ऑफ कुरान, चैरिटी, राइट? ये हमारी वर्शिप के अंदर बेस्ट एक्शंस हो गए। और हमारे मैटर्स में बेस्ट एक्शंस कौन से? हमारे मैनर्स कैसे हैं, हमारा अखलाक कैसा है सबके साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, सबके साथ हमारा मैनर्स कैसा है, और हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, वर्ड्स कौन से यूज करते हैं, गुड और बैड। हर टाइम बैड वर्ड्स यूज करना इट्स द बेस्ट एक्शन इन आवर मैटर? यस और नो? No. नो, राइट? ये बेस्ट एक्शन में बिल्कुल नहीं, बेस्ट एक्शन इन मैटर्स बिल्कुल नहीं है, राइट? कम्युनिकेट विद द गुड वर्ड्स। स्लीप एंड अवेक, स्लीप एंड अवेक यानी ये क्या मतलब? कैसे हम सो रहे हैं, कैसे हम उठते हैं, अल्लाह का जिक्र कितना करते हैं, दुआएं कितनी पढ़ते हैं, किसके तरीकों को फॉलो करते हैं, किसने हमें बताया कैसे सोना है, किसने हमें बताया कैसे उठना है, ठीक है? दीज आर ऑल्सो इन द बेस्ट एक्शन इन मैटर्स। गिव एंड टेक, हम कोई हेल्प करते हैं, हेल्प किसी करते हैं, किसी कुछ लेते हैं, तो हम हमारा क्या
रवैया होता है, क्या हम बिहेव करते हैं, गिव एंड टेक कैसे करते हैं। किसी को कोई चीज दे रहे होते हैं, ये लो पानी एक गिलास, मैं तुम्हें पानी दे रही हूँ तो मुझे भी पानी देना है, ये गिव एंड टेक। लेट्स थिंक अबाउट इट, ठीक है ना। अगर हम ये इस तरह करेंगे अपना बेस्ट एक्शन लाइक अपने एक्शन को गिव एंड टेक में, तो अल्लाह डजंट वांट दिस, ठीक है। अगर हम बेस्ट एक्शन कर रहे हैं गिव एंड टेक में, सो हमने कहना है कि वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, राइट। अगर हम कोई चीज सेल कर रहे हैं, अगर हम उसको झूठ बोल के हम चीजों को सेल करें, हम लाइंग का सपोर्ट लें, अगर वो चीज खराब है हम कहें नहीं ले लो भाई ले लो, ये तो बहुत अच्छी चीज है, एंड वी नो इन आवर हार्ट नहीं दिस इज द बैड थिंग, ये तो खराब हो चुकी है, हम फिर भी उसको सेल कर रहे हैं, ये बेस्ट एक्शंस में नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, सिंसियर रहना, अच्छी चीज सेल करनी है, अच्छी चीज देनी है। आपके पास जो चीज है अच्छी, आपका खाना खराब, 4 दिन से मामा ने फ्रिज में खाना रखा, आप देख रही हैं, आप भी मामा को सपोर्ट करिए, यू नीड टू जस्ट हेल्प हर, टेल हर नो मामा दिस इज नॉट गुड। हमने क्या करना है, बेस्ट एक्शन शेयर कर, बेस्ट चीजें शेयर करनी है। क्या हम खुद खराब खाना खाएंगे, नहीं ना। 4 दिन से फ्रिज में पड़ा हुआ खाना क्या हम खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, नहीं ना। वी नॉट able to share those kind of food to the poor peoples too, यानी हमने अपने अपने आप को बेस्ट एक्शन में रखना है इंशाल्लाह। समझ आ गया ना, ये क्या है, सारे बेस्ट एक्शंस इन मैटर है हमारे, इंशाल्लाह ये हम इसको फुलफिल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप लोगों को क्या टास्क दे रही हूँ मैं, कंपेयर करना है टेस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड टेस्ट ऑफ द आखिरा, और राइट एटलीस्ट 5 बेस्ट एक्शन। आपके लिए क्या 5 बेस्ट एक्शन है, आपने वो राइट करना है, ठीक है। ये वाला काम तो मैं आपको अभी दे रही हूँ, राइट एटलीस्ट 5 बेस्ट एक्शन राइट नाउ, और what I learned from these 2 verses, what is my action point। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग के एक्शंस पॉइंट क्या हैं, और आपने ये लिखने भी है इंशाल्लाह, ठीक है ना। लिखना आप लोग लेटर करेंगे इंशाल्लाह, बट आपने लिखना भी ये है कि 5 बेस्ट एक्शन अभी आपने लिखना है इंशाल्लाह, और क्या करना है, आपने मुझे बताना है कि आपने इस 2 वर्सेस से क्या लर्न किया। जी, who will come first? जो हमने आज 2 वर्सेस पढ़ी 1 और 2, उससे आपने क्या लर्न किया, क्या सीखा आपने, क्या करना है। जी अरूज। I learned that we should always do good deeds. अच्छा, 1 by 1 बोले ना, एक 1 बोले, ठीक है ना। अगर आप बार एक साथ बोलेंगे तो समझ तो नहीं आने वाला किसी को, ना मुझे आएगा ना आपको आएगा, है ना। एंड वी हैव टू गिव चांस टू आवर sisters and brothers, right? Yes, Aruj, बोले। I learned in the first and second ayahs that we have to be good to everyone, and that Allah Ta'ala will take test from us in the Barakallah. akhirah. Mashallah, alhamdulillah. Very good, mashallah. जी रायान, अब आप बोलें। Allah Ta'ala is the creator of this kingdom. माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम चीजें क्रिएट की हैं, और वो ही क्या है, मालिक हैं इस किंगडम के, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। मोर एक्शंस पॉइंट। Teacher, should I write the 5 best actions now? या राइट, लिखे फटाफट, शाबाश। Okay. यस जोहा, क्या लर्न किया आपने। Allah orders prayer, namaz, and listen to parents. माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक, वेरी गुड। यस, अबू बकर एंड आयशा, व्हाट यू लर्न। यस जायशा, आप बताएं। The Allah's made. Assalamualaikum. अच्छा, एक वालेकुम अस्सलाम। अबू बकर एंड आयशा, पहले आप बताएं। The Allah's made everything, and He's the creator. Allah ने अपने जी आयशा, Allah made everything. He's the creator of everything. MashaAllah, barakallahu feek, very good. Yes, yes Jaisha. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. I have learned that we should do good deeds. We should do everything that Allah has
Allah wanted from us. give to Allah give to us that like namaz, Quran, fasting, and other things, and it's like just our exams that Allah is taking our test, or we can say exam, and the day of judgment is the examination hall where we want to submit our exams, what we have done in this whole world. Very good, very good, mashallah. Teacher, can I speak now? Yeah, sure. Teacher, can I speak in Urdu? आपको जो आप जिसमें easy feel करती हैं, you can say इंशाल्लाह. टीचर, हम जिस दिन से इस दुनिया में आए हैं, हम उस दिन से एक एग्जाम दे रहे हैं. अल्लाह ताला ने हमें ये इस दुनिया में हमारी इबादत करने के लिए, उनकी इबादत करने के लिए भेजा है. हमें दूसरों के साथ पोलाइट बिहेवियर करना चाहिए, दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और दूसरों को इस तरह का बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, दूसरों को टीज नहीं करना चाहिए. अल्लाह ताला ने हम ये एक हमारा इम्तिहान ही है. जैसे हम अक्सर पेपर्स देते हैं, हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये वो वगैरह आते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा एग्जाम है वो है अल्लाह ताला ने जो हमारा एग्जाम लेना है. हमने जो दुनिया में किया है, हमने जो किया है वो सारा जब कयामत आएगी तब हमने सबमिट करवाना है, और अल्लाह ताला फिर उनको हिसाब में करेंगे. और अगर हमारी गुड डीड्स ज्यादा होंगी तो हम जन्नत में जाएंगे, और अगर हमारी बैड डीड्स ज्यादा होंगी तो हम जहन्नुम में जाएंगे. बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह. very good point. और हमने तो जाना जन्नत में इंशाल्लाह, राइट? सो जन्नत में जाने के लिए फिर हमने अपने आप को हमने क्या करना है, बेस्ट डीड करते रहना है इंशाल्लाह, राइट? क्योंकि हमारे पास जब हम डे ऑफ जजमेंट में जाए, मीट करेंगे अल्लाह से, तो वी हैव नो चॉइस खत्म, खलास, ठीक है ना? सो उस डे के लिए हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है इंशाल्लाह. जी, फरहत अवान, आई थिंक दिस इज Iman or Aman here, I think so, if I'm not wrong. जी, बाकी बच्चे भी बोलें क्या लर्न किया उन्होंने. शाबाश. जोहा ने बोल दिया, रयान ने कह दिया, हफ्सा आपने कह दिया ना. Yes, I think you should write something shared in a chat, right? You should listen the teaching of Allah. Yes, barakallah. Very good, mashallah. MashaAllah. Yeah, sister Farhat. Say salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Gee, what you learn? That Allah has created everything. Allah has created everything. MashaAllah. Barakallahu feek. Allah created everything. MashaAllah. And फटाफट फिनिश करें. Barakallahu feekum. अल्लाह ताला आप लोगों ने जो शेयर किया, अल्लाह ताला उसको आप लोग के एक्शन में लेकर आए. आमीन. फटाफट अब आप लोग लिखें, write at least 5 best actions. Hurry up. Now your turns. Teacher, I wrote some of them. You wrote it? Let's share to me, inshallah. Share with me. Did I tell you? Yes, you can tell me, inshallah, and share as well. बताएं क्या लिखा आपने? Okay, we should always fast, we should always pray, and we should be polite with everyone. We should have good manners to everyone because we should be always polite, and we should do ibadah of Allah. MashaAllah, barakallahu feekum. Very good. Excellent. Very nice. और किसने लिखा? 5 good deeds. Very good, Aruj, mashallah. Okay, आप लोग लिखिए 5 good deeds इंशाल्लाह, और आप लोग ने अब आयत नंबर 1 and 2 मेमोराइज करनी है इंशाल्लाह, ठीक है जी. और मेमोराइज करने के लिए इंशाल्लाह अभी हम पढ़ते हैं उसको, और we can read together इंशाल्लाह, ताकि आप लोग को उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कैसे हमने पढ़ना है, राइट? पढ़ने से पहले हम आते हैं थोड़ा सा recite each letter. तजवीद के तरीके से बिल्कुल हमने कुरान को पढ़ना है, राइट? और तजवीद क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तजवीद? तजवीद मीनिंग होती है टू मेक बेटर, राइट? यानी टू मेक बेटर, टू मेक ब्यूटीफुल,
our pronunciation when we are reading the Quran. This is the meaning of tajweed, right? To say every letter, every Arabic letter with the correct pronunciation. Understand? This is the meaning of tajweed. Each Arabic letter, हर Arabic letter को हमने उसके उसको जब pronounce करना है तो उसको उसकी pronunciation जो होनी चाहिए proper उसकी origin से होनी चाहिए, और हम उसको कैसे more beautiful और better बनाते हैं, यानी to make improve, to make better, कैसे हमने इसको improve करना है, कैसे हमने इसको better बनाना है. This is the meaning of tajweed, right? So for example, जैसे अगर हम कुरान में पढ़ते हैं ना कल्ब, कल्ब, right? The word कल्ब. So कल्ब means होता है heart. अगर हम इस कल्ब को क्या पढ़ें, कल्ब with a K, letter K, कल्ब यानी काफ with a काफ, कल्ब को हम पढ़ें कैफ, कल्ब, तो पता है इसका मीनिंग तब्दील हो जाता है. और कल्ब का मीनिंग होता है डॉग, जबकि हार्ट का मीनिंग होता है हार्ट, दिल, कल्ब, दिल, है ना. कितना डिफरेंस है ना, कि इसका मतलब कि हम इसको सही प्रोनाउंस नहीं कर रहे. कल्ब को हम क्या पढ़ रहे हैं, कल्ब. डिफरेंस समझ आ रहा है ना, कल्ब एंड कल्ब, डिफरेंस समझ आया आप लोगों को? यस और नो? Yes and Cal. यस यस. अब आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि डिफरेंस समझ आया कि नहीं आया, यस और नो? Yes. यस. मैं इसको पढ़ रही हूँ, इस लेटर को पढ़ी हूँ कल्ब, और अब मैं पढ़ रही हूँ कल्ब. समझ आया डिफरेंस? Yes. है ना? यस, गुड. यानी अगर इसको मैं कल पढ़ूंगी तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा डॉग. तो जहां जहां कुरान में कल्ब आ रहा है, अगर मैं इसको कल पढ़ूंगी तो इसका मतलब उसका मीनिंग में क्या दे रही हूँ, द डॉग. सो इसमें इसका मीनिंग तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है ना. तो हमने वर्ड्स को बिल्कुल उसके ओरिजिन से प्रोनाउंस करना है, टू मेक इम्प्रूव, टू मेक बेटर. दिस इज अ तजवीद. तो कुरान हमने तजवीद के साथ पढ़नी है ना. यानी उसके प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है, इसको मखरज से निकालना है. लेटर को मैंने उसके आर्टिकुलेशन पॉइंट्स, आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है, आर्टिकुलेशन पॉइंट होता है जहां से लेटर्स निकलता है हमारे माउथ पार्ट से, लेटर्स की जहां से ओरिजिनेट होते हैं माउथ पार्ट से, वो हम कहते हैं उसको मखारिज, आर्टिकुलेशन पॉइंट. ठीक है. और सिफात क्या होती हैं, लेटर की क्वालिटीज. जैसे हर इंसानी क्वालिटीज होती हैं, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन लंबा है, कौन छोटा है ना. किसी के बाल अच्छे हैं, किसी की नाक बहुत अच्छी है. अल्लाह ताला ने सबकी नाक अच्छी बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना. सो किसी को अल्लाह ताला ने कौन सा कलर दिया है, ब्लेस्ड कलर दिया है, किसी को अल्लाह ताला ने लंबा पैदा किया है, किसी को अल्लाह ताला ने छोटा पैदा किया है ना. तो ये क्या है, क्वालिटीज हैं पर्सन्स की, है ना. तो इस तरह लेटर्स की भी क्वालिटीज होती हैं. कौन से लेटर को हमने मोटा पढ़ना है, कौन से लेटर को हमने बारीक पढ़ना है, कौन से लेटर को हमने ज्यादा खींचना है पढ़ते हुए, कौन से लेटर को हमने बिल्कुल नहीं खींचना, है ना. ये क्या है, लेटर्स की क्वालिटीज हैं. और अरबी में कहते हैं हम इसको सिफात. लेटर की सिफात के साथ और उसकी मखारिज के साथ हमने कुरान को पढ़ना है. और ये हर मुसलमान पे फर्ज होता है, हर मुसलमान पे फर्ज होता है कि बेसिक तजवीद के साथ कुरान को पढ़ना. ठीक है. यानी दिस इज आर एग्जांपल्स इन आवर माउथ. ये माउथ पार्ट है हमारा, इस माउथ पार्ट के अंदर से ये तमाम लेटर्स निकलते हैं, अरबिक लेटर्स. जबान, ये हमारे टू लिप्स, बोथ अपर एंड लोअर, नोज. जबान के अंदर क्या है, हमारा जबान है, और मुंह के अंदर क्या है, दांत है, ऊपर नीचे वाले दांत. ठीक है ना. सो ये तमाम लेटर्स हमारे माउथ पार्ट्स के अंदर से अदा होते हैं, और अदा होते हैं, हमने इनको अदा वैसे ही करना है एक प्रॉपर उनके मखारिज के साथ और सिफात के साथ. यानी कि टू मेक बेटर. टीथ है ना, टीथ से लेटर्स निकलते हैं. 18 लेटर्स हमारे जबान से निकलते हैं, पता है आपको. और दोनों लिप्स से हमारे 4 लेटर्स निकलते हैं. फिर नोज से कौन से लेटर निकल रहे हैं, अच्छा दांत में आगे वाले दांत से भी कुछ लेटर्स निकलते हैं, ऊपर वाले दांत से भी कुछ लेटर्स हैं, नीचे वाले से भी कुछ लेटर्स हैं. तो हमने इसको लर्न भी करना है और कोशिश करनी है कि हमने तजवीद के साथ कुरान को पढ़ना है इंशाल्लाह. ठीक है ना. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज डिस्कस करेंगे, वो ये है ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए इंशाल्लाह. ठीक है. और कुरान में जो अरबिक लेटर्स में शॉर्ट वॉवल्स होते हैं. अंग्रेजी में, इंग्लिश में कौन कौन से वॉवल्स होते हैं, किसको पता है? A, इंग्लिश में हम E, I, O, U.
बारकल्लाहु फीक, ए ई आई ओ यू। और वॉवेल्स हम क्यों पढ़ते हैं इंग्लिश के, पता है किसी को? क्या उनकी क्वालिटीज होती हैं वॉवेल्स की? जी, एनीबडी नोस? ताकि सही अल्फाज पढ़ सके। इंग्लिश के वॉवेल्स को जी प्रोनाउंसिएशन हो सके। हाँ जी, एनीबडी नोस कि हम इंग्लिश के वॉवेल्स क्यों पढ़ते हैं, ए ई आई ओ यू? I don't. जी आयशा। To make words. To make what? Words. To make words, yes, to make words। और फिर ये कि हम ये भी उसको जानते हैं कि कौन से वर्ड्स की एक स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, इन वर्ड्स की क्या क्वालिटीज हैं, और फिर हम उनको टू मेक वर्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, राइट? और उनकी क्वालिटीज क्या हैं, राइट? ये भी डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह अरबिक में भी होते हैं वॉवल्स, बट अरबिक के जो वॉवल्स हैं वो देयर आर 3 शॉर्ट वॉवल्स, और उनको हम हरकत भी कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं? हरकत। कौन कौन सी होती हैं? उर्दू में तो हम कहते हैं जबर, जेर, पेश, लेकिन जो हमने अरबिक वर्ड्स को याद करना है ना, अरबी में कहते हैं हम फतहा, कसरा एंड दम्मा, राइट? अब ये जो फतहा, दम्मा, कसरा होती है, फतहा कहाँ होती है? लेटर के ऊपर, जो छोटी सी लाइन होती है ना लेटर के ऊपर, दैट इज अ फतहा, जबर। इट प्रोड्यूस आ साउंड, आ। बोथ लिप्स स्ट्रेच एंड ओपन इन वर्टिकल शेप। जब हम फतहा के साथ बोलते हैं तो उसका जो हमारा जो हमारी फेस, हमारा माउथ का माउथ की जो मूवमेंट है वो कैसी होनी चाहिए? वर्टिकल शेप। आ यानी शॉर्ट वॉवल्स, बिल्कुल हमने उनको शॉर्ट रखना है। यानी जैसे हम अलिफ पढ़ते हैं ना उर्दू में, आ, अलिफ, 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 यानी पूरा हम एक फिंगर के बराबर एक काउंट दे रहे हैं, अलिफ। लेकिन जब हम फतहा वाला पढ़ते हैं, ओनली फतहा, तो हम उसको हाफ पढ़ते हैं, अलिफ को हाफ। ठीक है, समझ आ गया? यानी कि हम उसको स्ट्रेच नहीं करते। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग क्या? इट प्रोड्यूस आ साउंड, आ ओनली, आ। कसरा कहाँ है? लेटर के बिलो होता है, ठीक है? सेकंड वोवेल कौन सा है? कसरा, ये लेटर के बिलो। बोथ लिप्स स्ट्रेच एंड ओपन हॉरिजॉन्टल शेप। ई, बी, टी, त्या कसरा, ई, बा कसरा, बी, हाँ, हमजा कसरा, ई, बिल्कुल हाफ साउंड आना चाहिए। दम्मा, दम्मा कहाँ होता है? ऑल्सो अबव ऑन द लेटर, अबव टू द लेटर, और इसका साउंड कैसा होता है? ऊ। यानी दम्मा में, पेश में हमने अपने होंठ को कैसे रखना है? अपने लिप्स को सर्कल, सर्कल फॉर्म, ऊ, 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 ठीक है ना? इट प्रोड्यूस ऊ साउंड। बोथ लिप्स मेक्स राउंड शेप, पूरा जो लिप्स है आपके राउंड शेप हो जाने चाहिए, ऊ, ऊ, राइट? समझ आ गया? 3 शॉर्ट वॉवल्स, फतहा, दम्मा, कसरा। यानी फतहा में जो साउंड होगा आ, कसरा में ई, दम्मा में ऊ, ठीक है ना? समझ आ गया? अच्छा, अब कुछ लेटर्स हैं जो हम पढ़ेंगे आज, पहली आयत में, दूसरी आयत में। उससे क्योंकि हमने खारिज भी तो पढ़ने ना, आर्टिकुलेशन पॉइंट्स भी पढ़ने, तो ये बात जहन में रखें कि हमने शॉर्ट वॉवल्स पढ़े। शॉर्ट वॉवल्स पढ़ने के बाद जो अलिफ, या और वाव, ये वो लेटर्स हैं जिनका हमने बहुत ख्याल रखना है। और ये लेटर्स हम, इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। इन कंडीशन, ये कंडीशंस क्या हैं? जब अलिफ, ओनली अलिफ हो, उसके ऊपर कुछ ना हो, उससे पहले अगर फतहा आती है तो वो बन जाता है पूरा, हम उसको पूरा स्ट्रेच करके पढ़ना है उसको, ठीक है? जब अलिफ हो और उससे पहले फतहा आ जाए तो हमने उसको स्ट्रेच करके पढ़ना है। अब हम क्वालिटीज देख रहे हैं, ठीक है? क्वालिटीज क्या है? अलिफ के साथ फतहा आ रही है, अलिफ का जो फ्रेंड है वो कौन है? फतहा। जब ये आ गया तो हमने एक तो उसको स्ट्रेट रखना है और उसको स्ट्रेच करके पढ़ना है। हाउ मेनी, how much we need to stretch this alif? 2 counts। और इस कंडीशन ऑफ अलिफ को हम कहते हैं अलिफ मदिया। क्या कहते हैं? अलिफ मदिया, राइट? क्या कहते हैं इस कंडीशन को? अलिफ की अलिफ मदिया, अलिफ मदिया कहते हैं, राइट? अलिफ मदिया। वेरी गुड। अलिफ मदिया आ गया तो हमने इसको 2 काउंट्स देनी है। अलिफ को कितनी काउंट देनी है? 2 काउंट्स। कितनी काउंट देनी है? 2 काउंट देनी है, ठीक है?
जब सेकंड वर्ड कौन सा, वाव, वाव के साथ उसका फ्रेंड जब फतहा आता है, दोनों सेम सेम है ना, सेम शेप के है ना, यानी वाव के ऊपर कुछ नहीं है तो इट्स मीन साकिन है, जज़म है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम वाव के ऊपर जज़म होता है और साकिन होता है। जब वाव के ऊपर साकिन और जज़म आ जाता है और उससे पहले उसका फ्रेंड फतहा आ गया, सॉरी दम्मा आ गया, तो हमने इसको कितना काउंट देना है, कितना स्ट्रेच करना है, सेम 2 काउंट, 2 स्ट्रेच। तो ये बन जाता है वाव मदिया। क्या बन जाता है, वाव मदिया। अब जब वाव आता है तो वाव को हमने बिल्कुल अपने होंठों को बिल्कुल गोल कर देना है, लाइक दिस, लाइक दिस शेप। करें आप लोग मेरे साथ, वाव वाव, यस। Wow. पूरा पूरा इस तरह शेप बन रही है आपकी लिप्स की। Yes, I saw in the mirror. Yeah, very good job. So पूरे वाव, जब वाव, एक तो वाव में वैसे ही हमारा होंठ लिप्स सर्कल होने चाहिए, और जब उसके साथ फतहा आ जाती है तो both together पूरी कंप्लीट सर्कल होनी चाहिए आपके लिप्स की। वाव, राइट, वाव, वाव द माउ, वू वू, लाइक दिस, ठीक है, विद अ टू स्ट्रेच, ठीक है जी। फिर थर्ड लेटर क्या था, या के ऊपर जब साकिन साकिन हो यानी जज़म हो और उससे पहले उसका फ्रेंड कसरा आ जाए यानी जेर आ जाए, तो वो बन जाती है या मदिया, और इसको भी हम 2 स्ट्रेच देते हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाता है, और हमने अपने लिप्स को मूव नहीं करना, और हमने क्या करना है, रेज मिडल पार्ट ऑफ आवर टंग, यानी मिडल पार्ट, देखेंगे मिडल पार्ट है ना टंग का, ये हमने इसको रेज करना है। ओपन माउथ हॉरिजॉन्टली विदाउट स्ट्रेचिंग, अपने माउथ को स्ट्रेच नहीं करना, या कसरा ये विदाउट स्ट्रेचिंग, ठीक है ना, 2 काउंट्स विदाउट स्ट्रेचिंग। और हम इनको क्या कहते हैं, या मदिया, वाव मदिया एंड अलिफ मदिया। और इन तीनों लेटर्स को हम क्या कहते हैं, अलजौफ। यानी अलजौफ कौन से लेटर्स होते हैं, जो हमारे कहाँ से अदा होते हैं, एम्प्टी एरिया बिटवीन थ्रोट एंड माउथ, एम्प्टी एरिया बिटवीन थ्रोट एंड माउथ, दिस एरिया अलजौफ, यानी कि ये खाली हिस्से से निकलते हैं हलक के, राइट, समझ आ गया ना। और इन दोनों को हमने कितने स्ट्रेच देने हैं, 2 काउंट्स, इन तीनों लेटर्स को, जहां मदिया आ गया वहां हमने 2 काउंट्स देना है, राइट, समझ आ गया ना। अच्छा, फिर अब आप देखें, ये प्रैक्टिस के लिए आपकी, तबारकल्लज़ी, तबारकल्लज़ी, देखें यहाँ पे क्या है, अलिफ साकिन, उसके साथ क्या है, फतहा। हमने यहाँ क्या करना है, ये क्या अलिफ मदिया, 2 काउंट्स देना है। तबा, समटाइम्स यहाँ पे अलिफ खड़ी जबर होती है, ठीक है, कुछ कुछ मुसफ कुछ आपके पास होंगे मुसफ, उसमें आप कहेंगे ये तो खड़ी जबर है, इट्स मीन कि ये क्या बन जाती है, वो अलिफ मदिया ही है, ठीक है, उसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, खड़ी जबर के साथ भी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 काउंट्स देने हमने, दिस इज द अलिफ मदिया, एंड देन वी हैव टू रीड लाइक अ 2 काउंट्स, तबारकल्लज़ी, लज़ी, देखें यहाँ पे क्या, या साकिन with the kasra, या मदिया, 2 counts, तबारकल्लज़ी, तबारकल्लज़ी, समझ आ गया ना। काफ को हमने किसे ज्वाइन करना है, लाम से ज्वाइनिंग देनी है, क्योंकि यहाँ पे शद्दा है, यहाँ पे ज्वाइनिंग देनी है, राइट। बियदिहिल मुल्क, बा कसरा, बी, वेरी लाइट, बी, राइट, या फतहा, या हाफ हमने देना है, हाफ 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 इसका ओपन होना चाहिए माउथ, यानी कि हाफ काउंट देनी, या फतहा या, समझ आ गया। दाल कसरा दी, सिंपल। बियदी, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बियदी, नो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, बियदी ही, राइट। हाँ को किससे मिलाएंगे, लाम से, साकिन आए, बियदिहिल मुल्कु, बियदिहिल मुल्कु, काफ दमा कू, नॉट लॉन्ग, काफ दमा कू, नो, ठीक है। हुआ, अब देखें, हा दम्मा भी आ गया और वाव कसरा भी वाव फतहा भी आ गया, हुआ, हुआ, वाव फतहा, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नो, हुआ, अला कुल्ली शैइन क़दीर, या कसरा, या साकिना following with the kasra,
Ya Madiya. And we have to give it, yeah, how many counts? 2 counts, right? And this is a qaf heavy letter. हमने heavy letter को, heavy letter का क्या मतलब होता है कि हमने अपना back part of the tongue को raise करना है, ठीक है ना? Heavy letter का मतलब क्या होता है कि back part of the tongue को हमने raise करना है इंशाल्लाह. अच्छा, similarly for these ayat too. 2 आयत किए ना, तो हम याद रखें हमने क्या किया, मदिया लेटर्स किए हैं और हेवी लेटर्स किया है. आपने इन दोनों लेटर्स के साथ इन दोनों आयत को रिसाइट करना है इंशाअल्लाह, राइट? ठीक है ना? अल्लज़ी खलक़, खा, खा फतहा खा, लाम फतहा ला, क़ाफ फतहा क़ा, खलक़. देखें वॉवेल्स है ना, शॉर्ट वॉवेल्स, तीनों लेटर्स पे शॉर्ट वॉवेल्स. कौन सा फतहा? हमने इसको हाफ काउंट देना है, लंबा नहीं करना. ऐसे नहीं पढ़ेंगे खलक़ खलक़, नो, दिस इज रॉन्ग. शॉर्ट वॉवेल्स, खलक़ खलक़, ठीक है? खलक़ल मौत, राइट? मौत मौत, खलक़ल मौत, अंडरस्टैंड? वल हयात, समझ आ गया? This is alif madya here. 2 counts. Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. आप लोग पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ? ahsanu amala. इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे amala, no. Amala फतहा है ना, short vowel. Amala, right? When is kahu? Okay. وهو العزيز الغفور. Understand? अच्छा जी, अब कौन पढ़ेगा? Let me. अल्हम्दुलिल्लाह we done. इतना तो हमने कर लिया. और आ जाएं जनाब, हम इसको पढ़ते हैं. कौन पढ़ेगा? Yes, we are going to do inshallah very soon. Let me see. ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो इंशाल्लाह. यस, अबू बकर पहली आयत पढ़ें इंशाल्लाह. बिस्मिल्लाह से स्टार्ट कीजिएगा. ओके? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम जी. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर. माशाअल्लाह. बस. क़दीर, ठीक है ना? कॉफ को हमने हैवी रखना है. ओके? क़दीर बोले. ओके, चले रयान. सेकंड आयत. रयान, आपका हैंड रेज है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. सेकंड आयत पढ़ें. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. MashaAllah, barakallahu feek. Very good. Yes, Aisha, your mic was also open. Do you want to read? Which bit? Sorry. Which ayah? You can read both, inshallah. تبارك الذي بيده الملك Slow. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Barakallah. Say this word again, this one. The second one. Yeah, this one. خلق الموت. Very good. خلق الموت. خلق الموت. Very good, mashallah. Barakallah. Yes, Abu Bakr? I want to recite. I think you did it. Aisha did it that. Okay, you want to also recite, so you can recite ayah 1, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk
وهو على كل شيء قدير ما شاء الله. الذي خلق الموت والحياة Yes, continue. पढ़ें. الذي والحياة. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ما شاء الله. بارك الله فيك. Very, very nice. Done. We done. Okay. Hafsa, do you want to read? I want. Yes. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. MashaAllah. Barakallahu feek. Yes. Anam, do you want to read ayah 2? Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Okay. Do you want to read with me? Okay. Okay. الذي خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة. الموت والحياة. الموت والحياة. Don't make it so long, okay? That's this wow. الموت والحياة. الموت والحياة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. MashaAllah. Barakallahu feek. You have to practice like this, inshallah. Yes. Jaisha, do you want to read ayah 1 and ayah? Yes. Yes. Both of you read ayah 1 and 2, okay? One by one. Okay. Start with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Shay'in qadir. Shay'in qadir. MashaAllah. Who was this, Jaisha? Yes. Okay, now ayah, your turn. Ayah 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Why you are in hurry, my dear? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Say slowly. أعوذ Yeah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. عزيز الغفور. عزيز الغفور. عزيز الغفور. عزيز الغفور. Barakallahu feek, mashallah. So this how you have to recite, read these both ayah, inshallah. And what I want, this is your task, inshallah. And you have to learn, memorize these ayah like this, inshallah. Okay? Yes or no? Show me your thumbs up, inshallah. All of you. Then we are going to do Kahoot. Yes, mashallah. Only Anam, Aruj, Hafsa want to show me the thumbs? Their thumbs? MashaAllah. Abu Bakr.
What about others? Let's start the Kahoot, inshallah. And oh, it's 5 minutes ऊपर, 5 minutes up हो गए. फटाफट Kahoot करते हैं, and then फटाफट हम इसको ऑफ करते हैं इंशाल्लाह. चले जी. Let's start. Ready हैं? Excited हैं? Let's join. Teacher, can you send the link on? Can you send the Kahoot link on WhatsApp? Yes, Or I'm going to do. okay. The link is kahoot.it, right? Or 8970792. This is it. Let's join inshallah. Excuse me, teacher. Yes. I have not Kahoot in my mobile, so can I answer in the text? Yeah, sure. आपको Kahoot मोबाइल पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप kahoot.it जाएं, उसको सर्च करें गूगल पे, लिखें kahoot.it, जो मैंने लिंक शेयर किया है. Are you in the WhatsApp group? Yes, I think so. जो AlMulk वाला ग्रुप है हमारा, आप उसमें हैं. Okay. मैंने वो लिंक शेयर किया है kahoot.it का, उस पे जाएं और वो आपका बड़ा इजीली आपको मोबाइल पे खुल जाएगा, आपको ऑन हो जाएगा. आपको कोई मोबाइल पे ऐप शैप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती इसमें, राइट? सो अपने गूगल पे जाएं, उसको सर्च लिखें kahoot.it, खुल जाएगा. फिर उसमें वो आपको कहेगा टाइप द पिन कोड, पिन डालें, गेम पिन डालें, आपका निकनेम आएगा, टाइप योर निकनेम एंड देन यू कैन जॉइन वेरी इजी, राइट? इंशाल्लाह. Yes, Jaisha, yes. So you can do like this, inshallah. ठीक है ना? उसको जाए अपने मोबाइल पे गूगल ऑन करें और उस पे लिखें, आपके पास आ जाएगा फटाफट. ठीक है जी. चलें, जब तक हम लेते हैं आपसे पॉइंट, जब तक बच्चे ज्वाइन करें, और बताएं मुझे आपने आज क्या लर्न किया आयत 1 और 2 से. हरी अप. कौन बताएगा मुझे क्या लर्न किया? जिसने ज्वाइन कर लिया वो बताएं. अरूज, अबू बकर, हफ्सा, अनम, जोहा. जोहा आप बताएं, आपसे नहीं पूछा मैंने. क्या लर्न किया? पूछ लिया था वैसे. यस, चलो ऐसे ही बता दें क्या लर्न किया. और अल्लाह के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में क्या लर्न किया जोहा? कि अल्लाह ताला की बात सुननी चाहिए, प्रॉफिट को फॉलो करना चाहिए. यस, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहिए. चले आप जरा पढ़ें, आयत नंबर 1 पढ़ें. चले जल्दी ज्वाइन करें Kahoot को इंशाल्लाह, देन वी कैन स्टार्ट इंशाल्लाह. बाकी ज्वाइन नहीं करना चाहते, देन मैं स्टार्ट कर दूं. Teacher, will we do any activities in these classes? Yeah, inshallah we will do. Tabarakallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. MashaAllah. Next ayat Zoha. Allazi. देख के पढ़ लेना. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-azizul ghafur. MashaAllah. Barakallah. Okay, should we start? I think so. Bismillahirrahmanirrahim. Ready? Then we are going to start, inshallah. Question number 1 is on your screen. Teacher, Yes? can I answer on the chat because my Kahoot is not Sure, working? sure. Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deeds if we will have sincerity, show to the people, because mama wants me and I want bad deeds from others. Jaldi kare answer.
Yes, Allah subhanahu wa ta'ala accept our deeds if we will have what? Sincerity in our deeds, right? So हमने sincere होके अल्लाह ताला के लिए good deeds करनी है क्योंकि वही good deed accept होगी. ठीक है जी, बारकल्लाह. Next question, जल्दी जवाब देना है. True, false? When new Islamic month start, we make party and celebration. True, false? False. We need to say dua of when this new month start, right? So, question 3. AlMulk revealed. AlMulk कब revealed हुई थी? मक्का में, मदीना में, कहाँ revealed हुई थी? In Makkah, beginning time of Nabuwa, after migration of Medina. सूरह मुल्क कब रिवील हुई, कहाँ रिवील हुई थी? मक्का में, मदीना में, इन मक्का, बिल्कुल स्टार्ट टाइम में जब प्रॉफिट सल्लम प्रॉफिट बने थे. So Prophet Surah Al-Mulk in Makkah, beginning time of Nabuwa of Rasulullah, right? यही हमने learn किया था ना. अच्छा, next question. Al-Mulk has dash ayat. कितनी आयत Al-Mulk की? 28, 30, 40, 20. How many? Very good. Yes. Good answer, right? 30 ayat Al-Mulk की. Very good, mashallah. Next question, true, false? Al-Mulk means the all kingdom is not belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. True, false? You have to correct the statement. This is the false statement. Al-Mulk means the all kingdom is belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. This is wrong statement, right? Very good. Next question. Quiz. Prophet ﷺ read dash surah before sleeping. Al-Mulk, Surah Al-Baqarah, Surah Al-Fatiha, Surah Al-Asr. कौन सी सूरह रसूल सल्लम सोने से पहले पढ़ा करते थे? Al-Mulk, mashallah, barakallahu feek. Next question. We must start to read Quran and each surah with Bismillah, Ta'awuz, A'udhu Billah, both together, ya only Ta'awuz? Yani Ta'awuz, A'udhu Billah. Both together, right? जब हम start करें पढ़ना कुरान को और हर सूरा को तो हमने क्या पढ़ना है? Both together. मेरा माइंड कहीं और था. बिस्मिल्लाह, ठीक है ना? सो हमने जब भी यानी कि बिस्मिल्लाह तो मस्ट ही कहना है, ठीक है ना? देखा ना आपने हर सूरह के स्टार्ट में क्या आती है? बिस्मिल्लाह आती है. तो बिस्मिल्लाह तो हमने मस्ट ही कहना है. और आउज़ बिल्लाह जब हम कहें तो जब हम स्टार्ट करें कुरान तब हम बोथ टुगेदर कह सकते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह तो हमने उस वक्त भी मस्ट ही कहनी होती है. We must have to say बिस्मिल्लाह at that time also, right? But when we start the each surah, we must need to say Bismillah as well. Good. Next question. The blessed us life to see our. Yani the best life, best for us. क्या जो blessing life है उसमें हमें क्या दिखाना है अपने? Only actions, best actions, bad actions, या none of them? Best actions, yes, barakallahu feek. यानी अल्लाह ताला ने जो हमें लाइफ दी है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने अपने बेस्ट एक्शन, the purpose है वो यही है ना. Ayah 2 tells us about the purpose of life and death, and everyone will be tested with their best action. True, false? Very good, Rayyan, mashallah. Yes, which is the answer? Yes, Ayah 2 हमें क्या बताया था? Ayah 2 में हमें क्या learn करने को मिला? Purpose of life and death, or everyone will be tested with their best actions, right? Good. Next question. To pronounce heavy letters means. Heavy letter का pronounce करने का मतलब क्या होता है? अभी बताया था मैंने अभी तजवीद में. The back part of the tongue raised, the middle part of the tongue raised, side of the tongue raised, या none of them. जब हम हैवी लेटर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है? अपनी बैक पार्ट टंग को रेस करना होता है, मिडिल पार्ट टंग रेस करनी होती है, साइड ऑफ द टंग रेस करनी होती है, या नन होता है? वेरी गुड. जब हम हैवी लेटर्स को पढ़ रहे होते हैं तो हमने अपनी बैक पार्ट ऑफ द टंग को रेस करनी होती है, ठीक है ना?
last question. I only want to love and follow our beloved Prophet ﷺ because I want to go to the Jannah. True, false? Very good, mashallah. It's a true statement. Yes, that's why I need to follow my Prophet, inshallah, because I want to go to the Jannah, right? Very, very good, mashallah, Rayan. Very good. Now let's see the podium. And Rayan is also on the chatting. So Rayan, yes, only Jaisha also. You was on the chatting. Or कौन था chatting में मैं नाम ले लूं. Abu Aish, Abu Bakr first, Hafsa second, and Zoha third, and runners up I just missed. Anyway, but all of you are runner best for me. Alhamdulillah, congratulations to all of you. And try to learn these ayat, inshallah. Now starting to learn these ayat 1 and 2, inshallah. And tomorrow we will do Hadith of Rasulullah sallam and 1 ayah as well. Ayah 3 we will do tomorrow of Surah Mulk, and the rest, yes. First, I accidentally left, but still I'm at the 4th place. Okay. Okay. Barakallahu feek. Right. So कल हम इंशाल्लाह हदीस पढ़ेंगे रसूल सल्लम की और अल-मुल्क की 3 आयत करेंगे इंशाल्लाह. Right. And then एक दुआ भी करेंगे कल इंशाल्लाह. ठीक है ना. और ये हम दुआ इंशाल्लाह याद भी कर लें. ठीक है ना कि हमने क्या क्या दुआ आज रमजान के मंथ में पढ़नी है इंशाल्लाह. ठीक है. सो कल मिलेंगे इंशाल्लाह. और कल एक एक्टिविटी भी करेंगे. कल कहूट नहीं होगा, कल एक्टिविटी होगी इंशाल्लाह. राइट. कैलीग्राफी एक्टिविटी इंशाल्लाह. ठीक है जी. Yeah, inshallah, we will do tomorrow, inshallah, calligraphy activity, right? Inshallah. चलें जी. और आप सब आज 2 आयत होमवर्क हैं. और क्या होमवर्क था कि आपने गुड डीड्स लिखने हैं इंशाल्लाह, और आपने कंपेयर करना है क्या गुड डीड्स एंड बैड डीड्स को. सॉरी, गुड डीड्स उसकी क्या होमवर्क दिया था मैंने कि हमने कंपेयर करना है, और वर्ल्ड टेस्ट और आखिरत टेस्ट को, राइट. और आपने बेस्ट एक्शन 5 लिखने हैं. ये काम करके आपने यू हैव टू सेंड टू मी इंशाल्लाह, और आई विल शेयर योर वर्क इन द ग्रुप एज वेल इंशाल्लाह. ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम. रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Teacher, can you show the homework?